Hey, what's up, India? How is it going, everyone? Let me know. Am I clearly audible? Let me know. Here we go. Am I clearly audible? Quickly let me know. Okay, great, guys. We are starting in less than 7 minutes. Just keep yourself ready. And we are starting soon in less than 8 minutes. A lot of people from all across India, across the globe, will be joining this particular segment, joining this particular session. I'm super excited to host you guys, and it's going to be one of the most important and significant days of your life in terms of spoken English. Keep your spirits alive, and I'll see you in less than 7 minutes, guys. Thank you. And make sure that no one is leaving the session, because we have the limited seats for the limited amount of people. By chance you leave it and seats are full, it would be very difficult.
everyone. Who all are excited for today? Less than 2 minutes are left. And what if I tell you that it's going to be one of the most significant sessions you guys would have ever been part of in terms of spoken English. आप सब लोगों की English fluency की जो journey है वो start होने वाली है. I'm super excited, guys. Who all are excited? Let me know. We are starting in less than 2 minutes now. Welcome to the day one of English fluency classes. Okay, like I'll be very quick and I'll be straightforward. How many of you guys are able to see me and how many of you guys are able to listen to me clearly? Let me know. All set? Just give me 1 quick minute. Let me read all your messages. Okay, Vikas is saying it's perfect. Sagar is saying which is perfect, audible and visible. Okay, what if I tell you that, you know what, that winners and losers, how many of you guys have already listened to this particular term? And very soon I will be closing the chats because there are a lot of people, those who have joined in. But what if I tell you that, you know, winners and losers, you all want to become fluent in English? Obviously, that's the only reason why you guys are here. What if I tell you that winners and losers both want to become fluent in English? But why is it so that winners become fluent and losers don't? आपको पता है रीजन पता है, and the mode of the communication of these particular classes would be mix of Hindi and English. आपको पता है ऐसा क्यों है कि winners तो fluent बन जाते हैं but losers नहीं बन पाते? दोनों का गोल सेम है कि मुझे fluent बनना है. But why is it so that winners struggle, like losers struggles, winners win that particular fluency journey, the fluency target, because winners के पास step by step planning होती है. That is it. That is it. Winners के पास step by step planning होती है. And today, what if I tell you कि I know आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा hopes होंगी, but what if I tell you कि आप लोगों ने जितना भी expect कर रखा है ना, the quality of this particular content, the quality of these particular classes, you guys are going to be getting the double and triple of that. How many of you guys are ready for it? Done? Done. And I really hope that like none of you will disturb the chat because this is going to be a very professional classes. If there is anyone who will misbehave in the chat box, will be thrown out. जैसे एक बच्चा लिख रहा है ना, video not good. So the point is, क्या मेरी video clear है? मुझे बताओ. Video clear है? We'll make it very quick and simple. Quickly, everyone. Done? Someone is saying facing problems. Someone is saying, okay, video clear nahi hai. I think it's clear. Like maximum people are saying it's clear. Okay, now let's quickly move ahead. So
Now, before I start, I would love to introduce myself. Look, my name is Aman Maskeen, and I am going to be your English fluency coach. Why English fluency coach? Look, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ के थक चुके हैं? मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ के थक चुके हैं, बट अभी तक आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं? मुझे बताओ. एंड व्हाट इफ आई टेल यू दैट टुडे आई एम नॉट हियर टू टीच यू इंग्लिश? वो तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट आई एम गोइंग टू लेट यू नो डायरेक्टली फ्लुएंसी हैक्स, जिनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप लोग आराम से फ्लुएंट बन सकते हो. So far, look, my name is Aman Maskeen and I've trained more than 7,200 people. We have made them fluent. I'm the founder and the CEO of the Elite Talkers, twice the Josh Talk speaker, and our strategies have been featured on Ask the India News. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, but the simple सा logic ये है that why we are taking this particular 2 or 3 days classes and even beyond that, because no one in India is actually making India fluent. Everyone is just teaching English. आप में से कितने लोग ऐसे हैं, right? आप लोग मुझे बताओ. I know, I totally understand your problem. I totally understand that when you speak, आप बहुत ज्यादा अटक जाते हो. When you speak, you don't have that kind of confidence. When you speak, you are facing the lack of vocabulary words. Yes or no? How many of you guys can face that particular pain? I totally can relate with that. And उसी problem को actually main picture में रखते हुए we're gonna start this particular session, so don't worry about it. देखो यार, एक चीज है, I don't know you guys, you don't know me, so we will have to have some little patience so that we can understand each other, and then we will be then we will be moving ahead. Done? Are we guys ready? Because इतनी funny सी बात है कि एक इंसान जो पिछले last 20 या 25 सालों से इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, और वो विद इन 20 मिनट्स में काफी इरिटेट हो जाता है कि क्या यार, मैं 20 मिनट हो गए, मैं फ्लुएंट नहीं हुआ. इट इज सो फनी. सो यू नीड टू हैव अ लिटिल पेशेंस एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ये जो पर्टिकुलर सेशंस है, ये मैं लेता ही इसलिए हूं, एलीट टॉकर्स फैमिली लेती ही इसलिए है ताकि हम आप लोगों को अच्छे से सर्व कर सकें. Done. Here we go. We are going to be closing the chat box, so don't worry about it. Within 2 or 3 minutes, we'll be closing it. So look, the goal is very simple: to help people become fluent in English directly without wasting time on studying. And why you should attend it till the end? And ये different इसलिए because I am not here to teach you. Rather, I am here to give you the fluency directly. And I think that's what exactly you want. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इंग्लिश अस्त्रा का नाम ही नहीं सुना? मुझे बताओ. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इंग्लिश अस्त्रा का नाम नहीं सुना? आपको पता ही नहीं इंग्लिश अस्त्रा होता क्या, आपको पता ही नहीं कि ये प्लेन एंड वाटर कंसेप्ट क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि ये ताव प्रिंसिपल क्या होता है. सो व्हाट इफ आई टेल यू दैट ऑल दीज आर द न्यूली इन्वेंटेड स्ट्रैटेजीज, दोज हु हैव बीन हेल्पिंग द एंटायर इंडिया, राइट, सो दैट दे कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश क्विकली एंड स्मार्टली. एंड ये हम सारी नई स्ट्रैटेजीज, आज के जमाने की स्ट्रैटेजीज हम स्टडी करेंगे ताकि आप सब लोगों को रिजल्ट्स अच्छे से मिल पाए. Done? Are we guys clear? Now, like for your reference, look, the kind of strategies which I'll be talking about, ये सारी की सारी strategies जोश टॉक, इंडिया न्यूज, आज तक जैसे big platforms में like nominate हो चुकी हैं. We have been featured on Aaj Tak, India News, from Bollywood to Malaika Arora to Mandira Bedi to Irfan Pathan and all that stuff. Even the Rajasthan government has acknowledged these particular new strategies. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश को एक नई स्ट्रैटेजीज के साथ कैसे फ्लुएंट होना है, स्मार्ट कट्स के साथ नहीं पता? मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं वही पुरानी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए? सो आज इस पर्टिकुलर सेशन का जो मेरा मेन एम यही रहेगा. आई एम लाइक, डोंट लिसन टू मी बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ. What I would request you, you guys just give me your half an hour. That's it. I don't need much of your time. Right? And I totally understand that you guys have been watching a lot of YouTube videos and Google videos. Results nahi mile na. Aa gaye na yahan pe. And what if I tell you that this is going to be the last stop for each and every one of you, and you will get the best clarity and the best piece of advice and the results over here. How many of you guys are excited to bring the change? अच्छा, आपको याद है, इधर देखो यार, कितने लोगों को अपना बचपन याद है कि बचपन में हमें टीचर्स कहते थे कि यार अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश सीखने की कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हम घुमाएं और आप लोगों को इंग्लिश आ जाए. बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट टुडे you will feel that particular jadoo ki chhadi over here? How many of you guys are excited to see the total transformation in less than 1 hour 30 minutes? How many of you guys are ready for this particular challenge? Ready? Start kare now.
It's getting interesting. Great. Guys, आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है बॉस. जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, व्हाट इफ आई टेल यू, ऐसा ना आप पहले कभी आपने देखा होगा ना आप आगे देखोगे. रेडी फॉर दैट? लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, समवन इज सेइंग जादू की छड़ी होनी चाहिए, अभी मिलेगी. स्टेप बाय स्टेप यू विल बी गेटिंग इट. रेडी? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. देखो यार, यू गाइस डोंट नो मी, आई डोंट नो यू गाइस. तो पहले फटाफट क्या करते हैं, लेट मी टेल यू कि हम इन 2 या 3 दिनों में क्या करने वाले हैं. आप चैट से डिस्टर्ब हो रहे हो, रजत हो गए, कैन यू प्लीज क्लोज द चैट्स, बिकॉज वी आर हियर टू सर्व यू. चलो चैट्स बंद कर देते हैं, ठीक है? आपने बोला, मैंने कर दी, ठीक है? चैट्स आर क्लोज नाउ. अब सब लोग सीखना. देखो, इन दीज पर्टिकुलर 2 days ना, वी विल बी स्टार्टिंग विथ थ्योरी and then we'll be doing a little bit of practical, then we'll be again doing theory, and then we'll be again doing the practical. So it's going to be the mixture of practical and theory. Theory and practical में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? I know अभी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, बट मैं आप सब लोगों के डाउट्स को एक प्लेस पे लाके I'm gonna solve it step by step. Done? Here we go. चलो देखो, this is going to be the theory concepts and obviously ये practical execution तो लिखा हुआ है. सबसे पहली चीज है, मैं आपको एक बारी ओवरव्यू करवा देता हूं, then we gonna do it everything step by step. Now सबसे पहली चीज we'll be discussing fluency is not what you think. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि फ्लुएंसी मतलब होता है बिना रुके बोलना, इंग्लिश में बोलना, हिंदी की तरह बोलना. फ्लुएंसी मींस इन द एबिलिटी टू टॉक विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एक्चुअली दैट्स नॉट द रियल मीनिंग, एंड प्रोबेबली यही रीजन है कि आप लोग फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हो. वी गोना टेल यू दैट व्हाट एक्चुअली फ्लुएंसी इज. आधे लोगों को यहाँ पे फ्लुएंसी क्या होती है उसका मीनिंग नहीं पता होगा. थोड़ा ऑफेंडेड फील कर रहे हो? डोंट वरी गाइज, एज आई एम गोइंग टू बी योर ट्रेनर, तो अगर मेरी बातों में आपको लगे कि मैं आपको डांट मार रहा हूं, तो सच में मैं आपको डांट मार रहा हूं. आज सब लोगों के मैं कान भी खींचूंगा, ठीक है? ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या नहीं करना और क्या करना है और कैसे करना है. एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू. जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ एंड जस्ट बी विद मी एंड सी द मैजिक हैपनिंग विद मी. Here we go. कुछ लोग, you know, some people say as the magician of English language. So let me prove you that. चलो इधर आओ. So what we will be doing, फ्लुएंसी इज नॉट व्हाट यू थिंक, इसके बारे में बताऊंगा. व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. आधे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए. लाइक इंग्लिश सीखनी है, बस वो ये बोलते रहते हैं सीखनी है, बट फर्स्ट स्टेप नहीं पता होता. आई विल ऑल्सो बी लेटिंग यू नो योर लेवल. इंग्लिश में लेवल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे मेरा लेवल ही नहीं पता, अगर मुझे मेरा टारगेट नहीं पता, तो फिर मैं कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, दैट प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल. यस और नो? एंड लेवल के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है फॉर द रिजल्ट्स. एंड ये जितने भी 2020-23 के स्मार्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी फ्लुएंसी को, जो आपके स्टाइल को, जो आपके वोकैबुलरी को, जो आपके फॉर्मेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उन जैसे कंसेप्ट जैसे ताफ प्रिंसिपल, इंग्लिश असरा, टाइम एंड सेंस, ESB, ये सारी न्यू टेक्निक्स हम सीखेंगे. हाउ यू कैन मास्टर द वोकैबुलरी इन जस्ट 10 minutes. विश्वास नहीं हो रहा ना कि पूरी वोकैबुलरी हम मास्टर कर लेंगे 10 minutes में? These are all other points we want to discuss. And even fluency secret of actors and cricketers. यार आपको क्या लगता है ये एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स इतना बिजी होते हैं, अगर इनको इंग्लिश सीखनी हो तो ये आप लोगों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करते यार. यूट्यूब पे जाना, गूगल पे जाना, ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ना. They have smart because they want to save their time. ये लोग क्या हैक यूज करते हैं, I'm gonna let you know that. So ये सारी theoretical चीजों के बाद आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी conversation को start ही नहीं कर पाते. Like whenever you want to start a conversation, whenever you want to talk with someone, you're not able to start a conversation. I'm gonna let you know exactly कैसे करना है step by step. And आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है guys. You guys are going to be very lucky. You once attended and you guys are going to be like having like आपको वो एक बहुत ही अच्छा experience लगेगा. And even how to start and like how to speak and write with 0 errors. बोलते तो बहुत लोग हैं, लिखते तो बहुत लोग हैं, पर गलत लिखते हैं, गलत बोलते हैं, फिर उस बोलने का कोई फायदा नहीं. कैसे हम 0 errors की तरह सीख सकते हैं, I'm gonna let you know. प्लस आप लोग मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करोगे. ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं और तुम लोग खाली बैठे हो. मूवी नहीं चल रही. इट्स नॉट अ नेटफ्लिक्स मूवी, राइट? यू आर गोइंग टू बी डूइंग प्रैक्टिस विद मी, और सब लोगों के आंसर्स भी मैं चेक करूंगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग वुड बी, आप लोगों का नेक्स्ट 7 to 8 वीक्स का क्या प्लानिंग होनी चाहिए. प्लस जो लोग इस पर्टिकुलर इवेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई विल बी सिलेक्टिंग 75 पीपल जिनको मैं खुद लाइव ट्रेन करूंगा. एक्साइटेड फॉर इट? फटाफट. एंड ये दोनों चीजें हम आज नहीं करेंगे. Like कुछ चीजें आज करेंगे and कुछ चीजें will be doing it tomorrow. Done?
क्लियर? एंड मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से बोल रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यू गाइस आर एंजॉयिंग इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एबल टू फील द कनेक्टिविटी फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेकंड यू हर्ड मी? डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा स्पीड फास्ट लगे तो बोल देना कि थोड़ा स्लो हो जाओ, कोई ज्यादा स्पीड स्लो लगे तो बोल देना फास्ट हो जाओ, कोई दोबारा बात रिपीट करनी हो तो बस रिपीट लिख देना, आई विल रिपीट इट फॉर यू। डन? बिकॉज वी आर हियर, क्योंकि यार मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आया हूं ना, तो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन? सबको समझ में आया? Here we go, स्टार्ट करें। यार एक चीज तो मैं बिल्कुल आपको ना विदाउट एनी हेजिटेशन आई रियली वांट टू टेल यू, यार क्या तुम लोग 2 दिनों में फ्लुएंट हो जाओगे? क्या आप इन 2 या 3 दिनों में फ्लुएंट हो जाओगे? द पॉइंट इज बिल्कुल नहीं, नहीं होने वाले। 2 दिनों में बिल्कुल फ्लुएंट नहीं होने वाले। अगर होना होता तो हम अब तक 90% इंडिया को फ्लुएंट बना चुके होते। बट व्हाट इफ आई टेल यू, इन 2 दिनों में ना आप जिस हिसाब से इंग्लिश के बारे में सोचते हो और आपके हिसाब से जो स्टेप्स है ना, कि अगर मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो मेहनत करनी है, रीड न्यूज़पेपर्स करना है, शीशे के सामने बोलना है, ग्रामर की बुक्स पढ़नी है, लाइक उस बोरिंग सिलेबस को वी गोना टीयर इट अप, एंड मैं आपके दिमाग में एक जमाने की इंग्लिश डालूंगा ताकि आपको हर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पता लगे। एंड इट्स सुपर इजी, इट्स सुपर इजी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर इट कि आप लोगों का पूरा इंग्लिश का जो नजरिया है बदलने वाला है? नजरिया बदलते ही नतीजा विल बी टोटली डिफरेंट। हियर वी गो नाउ, एंड दिस पर्टिकुलर सेशन वुड बी लाइक 1 से 1.5 आवर्स का होगा, तो मुझे झेलने की आदत डाल लो गाइस। एंड व्हाट इफ आई टेल यू, यू गाइस आर गोइंग टू बी मिसिंग मी अ लॉट, राइट? सो 1.5 आवर्स का होगा, और अगर आप बिजी हो ना तो अभी सेशन को छोड़ के जा सकते हो। लाइक करना तो पूरा अटेंड करना, वरना 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ दिस पर्टिकुलर सेशन विल रन टिल 8:20 PM। टुमारो ऑल्सो आई विल बी कमिंग लाइव, एंड कल का जो सेशन है वो 9 PM तक रन होगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल स्टफ्स विल बी डूइंग, एंड फ्रॉम द डे 3 ऑनवर्ड्स वी वांट टू डू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करेंगे। बातें बहुत हो रही है, थोड़ा पढ़ाई का काम करें। here we go, like here we go, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ यार whenever wherever I go ना, आप सब लोगों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन चल रहा होगा, अमन हाउ टू डू, अमन व्हाट टू डू टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश? यस और नो? सब लोगों को यही वाला क्वेश्चन का आंसर पूछना होता है कि यार अमन इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू? व्हाट इफ आई टेल यू दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग? ये क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आई वांट कि आप सब लोगों का ना पहले टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट का मतलब ही लेवल होता है, कि आप सब लोगों को अपना लेवल एंड उसके अकॉर्डिंग टारगेट पता होना चाहिए, देन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल मेक सेंस। एक सिंपल सी बात ये है कि व्हेनेवर आई गो टू अ डॉक्टर ना, मैं डॉक्टर को पहले अपनी प्रॉब्लम बताता हूं, देन आई आस्क फॉर द मेडिसिन। सिंपल सी बात है। अगर मैं डॉक्टर, अब मैं गूगल यूट्यूब पे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल यूट्यूब पे डायरेक्टली मेडिसिन मांग लेता हूँ, हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई लेट यू नो। सो हाउ दिस पर्टिकुलर इवेंट विल बिगिन, कि मैं आप सब लोगों का सबसे पहले तो टारगेट सेट करूंगा। टारगेट मतलब चाहिए क्या फ्लुएंसी में, ये नहीं कि मैं बिना रुके बोल पाऊं इंग्लिश में। दिस इज बुलशिट टारगेट, ये बच्चों वाला बात है। लेट्स बी वेरी प्रोफेशनल। सो वी गोना टेक केयर ऑफ योर लेवल एंड टारगेट, एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के मैं 2 लेवल्स में आप पूरे बैच को डिवाइड करूंगा, एंड फिर आपके लेवल एंड आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आई एम गोना लेट यू नो। सिंपल इजी, मतलब डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज नहीं बताई जाएंगी, पहले आप लोगों को पहचाना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वी विल बी लेटिंग यू नो द स्ट्रैटेजीज। डन? मूविंग हेड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ, आगे बढ़ूं? अरे बोलो, मुझे सपोर्ट करते रहो। यस, महेंद्र इज सेइंग यस। हु एल्स? कम ऑन गाइस, लाइक चैट। आप लोगों को चैट्स नहीं दिख रही, पर मुझे तो दिख रही है ना। अजय इज सेइंग डन, आशीष इज सेइंग डन। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ how many of you guys agree that this is exactly what your situation is? Like whenever you try to speak, you have a lot of fear, hesitation, fumble, cluttered mind, mind goes blank, and words ही नहीं आते हैं, मैं stuck हो जाता हूँ। This is your situation. And जैसे ये situation आती है ना, हमें क्या लगता है, यार मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिस इज मी, मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज में व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, आई नीड कॉन्फिडेंस। मैं ये चाहता हूं कि मैं बात करूं एंड सब लोग मुझे सुने, एंड आई शुड बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो लूजर्स होते हैं ना, अब देखना, थोड़ा आप लोगों का कान खींचने का टाइम आ गया। पता है क्या चीज है, जो लूजर्स होते हैं ना, उनको पता है क्या लगता है, कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो ठीक है, बस मैं मेहनत करूंगा और मैं कॉन्फिडेंस तक पहुंच जाऊंगा। जब मेहनत करने की बारी आती है ना, दे टेक टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। जो आप सब लोग आ गए हो ना, कि आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए, आपको टिप्स चाहिए, हियर वी गो, लेट मी गिव यू दीस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज। आपको पता है, अगर आपको इंग्लिश को मास्टर करना है ना, इसका पहली बात तो स्क्रीनशॉट मत लेना, कोई इन पॉइंट्स को लिखेगा नहीं।
अगर आपको इंग्लिश को मास्टर करना है ना, बेस्ट वेज टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश, रीड न्यूज़पेपर्स करो, वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, रिमेंबर और मेक नोट्स ऑफ ग्रामर रूल्स, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडलेस यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, ये करो वो करो, थिंक इन इंग्लिश करो। एंड कुछ लोग तो इंग्लिश का इन्वायरमेंट का वेट करते रहते हैं। आई वुड लव टू ओपन अप द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इन स्ट्रैटेजीज को सुन के थक चुके हैं? लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर टोटली फेड अप कि यार ये स्ट्रैटेजीज हमने बहुत बचपन से यही सुनते आ रहे हैं यार। क्या कभी आप लोग मुझे दिल से बताओ, क्या इन स्ट्रैटेजीज ने कभी भी हमें किसी भी तरीके की हेल्प की? द आंसर इज नो। दीज लाइक और द गुड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद दीज पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज। वाओ, डन। ये पुराने जमाने के 5 साल पहले हम ऐसे पढ़ाते थे यार, नेवर विद फ्लुएंसी। ये स्ट्रैटेजीज हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है थिंक इन इंग्लिश कर लो, क्या हम थिंक इन इंग्लिश कर पाते हैं? द आंसर इज बिग नो। एंड होता क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि जब हम ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं ना, हमें एवरीडे वी फील ओके आई एम गोना बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं कल बनूंगा, मैं परसों बनूंगा, नेक्स्ट मंथ बनूंगा। क्या हम इस ब्लैक जोन से, आई कंसीडर दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ ब्लैक जोन, क्या हम इस पर्टिकुलर ब्लैक जोन से कभी निकल पाए हैं? द आंसर इज नो। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कि सिंपल सी बात है, हम इन चीजों को कर रहे हैं 5 से 6 सालों से कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं कि मैं कल होऊंगा कॉन्फिडेंट, मैं कल होऊंगा कॉन्फिडेंट, बट वी आर नेवर बिकमिंग कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। व्हाट इफ आई टेल यू कि एज पर द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश शस्त्र, आज का पहला कंसेप्ट, एंड नाउ दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ये तो लूजर्स की अप्रोच है गाइस। अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो, आई एम सो सॉरी, this is not the way. What if I tell you now, the question is, if this is the wrong approach, what is the right approach? Right approach is this. आपको पता है इंग्लिश शस्त्र, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लूजर्स एंड विनर्स। लूजर्स इस तरीके से चलते हैं, जो विनर्स है ना, विनर्स जो होते हैं, विनर्स चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक इंग्लिश शस्त्र का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है ना, पहली तो चीज एक, मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कभी होगा क्या कि आज आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे, टुडे यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, आप कल उठे और आप बोलने लग गए? इज इट पॉसिबल? लेट मी नो, मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल? ये कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। ऐसा होगा क्या कि आज तो आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे और कल आप उठे एंड यू आर टोटली कॉन्फिडेंट? नो। इट्स, एंड आप सब लोगों को पता है इट्स गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यस और नो? तो अब टाइम आ गया है कि आपके गोल को ना 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का, 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करने का। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यू विल बी एबल टू अचीव इट। सो एज पर द इंग्लिश शस्त्र व्हाट इट सेज, एंड जो विनर्स की स्ट्रैटेजीज होती है वो क्या होती है कि वो डायरेक्टली कॉन्फिडेंस को चेज नहीं करते यार। नो, दे डोंट डायरेक्टली चेज द कॉन्फिडेंस, दे ट्राई टू बिकम दिस फर्स्ट। वो सबसे पहले ये बनने की कोशिश करते हैं। ये चीज क्या है, आई एम गोना लेट यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राई टू, first of all they try to achieve this particular goal number 1, then they try to achieve this particular goal number 2। एक सिंपल शॉर्ट बात ये है कि आपको सीधा नहीं जाना, आपको पहले यहां जाना है, then only you can reach to the confidence, and this process is a step by step process which is known as English Shastra। Done? आया समझ में? इन शॉर्ट बात क्या है कि बॉस एग्जैक्टली सामने नहीं जाना, दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि अगर सामने जाओगे तो दिस पर्टिकुलर ब्लैक जोन विल नेवर लेट यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश शस्त्र ये बोलते हैं कि बॉस स्टेप बाय स्टेप चल के पहले यहां पे पहुंचो, फर्स्ट ये अचीव करो, देन स्टेप बाय स्टेप पहुंच के यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस स्टेप नंबर 1? राइट? यस और नो? सिंपल सी बात ये है कि अच्छा ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए स्टेप नंबर 1 पे जाना चाहिए। अब स्टेप नंबर 1 क्या है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। That's the going to be the fun part। इसका आंसर आप और मैं मिलके देंगे। You all want fluency, yes or no? Chats करो open, everyone, and सब लोग participate करेंगे मेरे साथ। It's going to be the new world of spoken English। चलो, आप सब लोगों को fluency चाहिए। चलो, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि fluency होती क्या है? What is fluency for you? Let me know, let me know। आप लोगों को फ्लुएंट बनना है ना, फ्लुएंसी चाहिए ना, मुझे बताओ फ्लुएंसी होती क्या है? सब लोग अपना अपना आंसर देंगे, मुझे कोई गूगल यूट्यूब का आंसर नहीं चाहिए, जो आपके दिल में, जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन। समवन इज सेइंग आई डोंट नो, समवन इज सेइंग स्पीक विदाउट पॉज, ओके, कंटिन्यू स्पीकिंग, ठीक है? एवरीवन क्विकली, आई वांट एवरीवन टू राइट इट डाउन। राइट, फ्लो ऑफ स्पीकिंग, बिना रुके बोलना, लाइक फ्लुएंटली बोलना, जस्ट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है? स्पीक डेली, नो बैरियर्स, ओके? फ्लुएंसी समवन इज सेइंग नहीं पता, व्हिच इज ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? फ्रीली बोलना, ओके? रजत क्लोज द चैट्स। यार आपने एक चीज नोटिस की
कि हम सब लोगों को इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है, राइट? गोल तो सबका सेम है कि वी ऑल नीड फ्लुएंसी, बट व्हाई इज इट सो कि जब फ्लुएंसी के बारे में पूछा जाता है द आंसर इज टोटली डिफरेंट? यस और नो? ये कितनी अजीब सी बात है ना, कि गोल तो सबका सेम है, पर जब रास्ते की बारी आती है पूछना कि फ्लुएंसी है क्या, everyone is giving their own answers, and probably that's the only reason कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, हम सब लोग हम सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यार फ्लुएंसी होती क्या है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू लेट यू नो कि आप सब लोगों ने जितने भी आंसर्स दिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत थे, बट वो इनकरेक्ट थे। अब मैं जो आपको फ्लुएंसी के बारे में बताऊंगा, वो आपका टारगेट भी सेट होगा, उससे आपके लेवल के बारे में भी पता चलेगा, एंड यू विल गेट द प्रॉपर क्लैरिटी दैट हाउ यू कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। एक्साइटेड? पहली बात तो फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। फ्लुएंसी बेसिकली मींस, अब सही समझो, जो अभी तक आपके दिमाग में, इट्स टाइम टू टेक इट आउट, राइट? उसको डस्टबिन में डालो। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट बिकॉज इट्स वेरी इजी। एंड इंग्लिश अस्त्र के कंसेप्ट से every week we are making more than 200 to 300 people fluent in English. अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, but here we go. सबसे पहली चीज क्या है कि fluency is not just about speaking. Fluency is also about writing good as well. Yes or no? कितने लोग इस चीज को एग्री करेंगे कि फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं बोलूं, कॉम्बिनेशन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। ऑब्वियसली गलत कौन बोलना चाहता है? सब लोग। इफ टुडे आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, I would make sure that I'm not making any grammatical errors. I want to speak correct. I want to write correct. Yes or no? So fluency is the ability to write and speak correct English, that too quickly with confidence. This is the exact way of fluency. How easy is it? Yes or no? Simple सी बात क्या है? Let's be very grounded and let's understand this thing. Fluency का मतलब क्या हुआ कि ढंग से लिख पाना, बोल पाना करेक्टली, वो भी जल्दी। कोई स्लो, अगर कैसा लगेगा अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, okay guys, I will, it will not look good. Obviously fluency is the ability to write and speak correct English quickly with confidence. How many of you guys loved it? अभी how many of you guys got in clarity? हाँ यार, क्योंकि आप जो लोग आंसर्स दे रहे थे ना, वो टोटली बच्चों वाले आंसर्स थे। फ्लुएंसी मतलब बिना रुके बोलना, नो, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। यस और नो? सिंपल सी बात ही है। फ्लुएंसी ये नहीं बिना रुके बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना। Let's not be like crying babies, guys. Let's be very professional. सिंपल सी बात क्या है फ्लुएंसी का मतलब, एंड इस मीनिंग में आपकी हर चीज कवर अप हो रही है। कॉन्फिडेंस चाहिए है, फ्लुएंसी चाहिए है, रिटन चाहिए है, फटाफट चाहिए है, करेक्ट होना चाहिए है। यस और नो? अब आपको पता है द बेस्ट थिंग, अब you will get the proper, the excitement of it. Over here I've used 6 words. मैंने 6 words यूज किए, राइट, स्पीक, क्विकली, कॉन्फिडेंस, करेक्ट। आप लोग मुझे बताओ इन पांचों वर्ड्स में से, आई एम सो सॉरी आई सेड 6 बट इट इज एक्चुअली 5, इन पांचों वर्ड्स में से आप लोग पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ो, ठीक है? इन पांचों वर्ड्स में से मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी नो। आप लोग मुझे बताओ इन पांचों चीजों में से व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू नीड द मोस्ट। लेट मी नो। साक्षी इज सेइंग कॉन्फिडेंस, ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्फिडेंस, एल्स समवन इज सेइंग स्पीक, ओके, हु एल्स, समवन इज सेइंग करेक्ट, ओके, कुछ लोग करेक्ट भी कह रहे हैं, ठीक है। lot of people are saying like confidence, 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 ठीक है। who else? lot of people also, कुछ लोग correct को भी ज्यादा कह रहे हैं। who else? someone is saying right, कुछ लोग right को भी पोल दे रहे हैं। chats close, okay। now that's the only reason why probably हम लोग struggle कर रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है। What if I tell you, and I'm not sorry about it, but the time has come to pull your ears down. What if I tell you कि आप में से जितने लोगों ने भी आंसर कॉन्फिडेंस दिया, and I'm so sorry, you guys are wrong. And I'm not saying you are just wrong. You are making a blunder. मतलब लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता। अगर किसी ने भी आंसर कॉन्फिडेंस दिया है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत पीछे है। आई लेट यू नो, मेरी बात का बुरा मत मानना, बिकॉज आई एम हियर टू इंप्रूव यू गाइज, एंड मेरा डांटना आपको फर्ज है। इधर देखो, जिसने भी आंसर कॉन्फिडेंस दिया है गलत, क्विक दिया है गलत, स्पीक दिया है गलत, राइट दिया है गलत। इस क्वेश्चन का एक ही राइट आंसर है, विच इज टू बी करेक्ट। आप लोग मुझे एक सिंपल सा, नहीं, someone is saying all are important equally, no Mahinder Singh, don't use your brain now, just listen to me, right? The point over here is सब लोग इक्वल है तभी लिखे हुए हैं, बट इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज टू बी करेक्ट। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि 95% लोगों ने क्या आंसर दिया था कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए।
क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमें किसी भी चीज का करने का कॉन्फिडेंस कब आता है? हमें किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस करने का, लाइक किसी भी चीज को कॉन्फिडेंटली करने का हमें कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमें पता हो कि हम सही हैं। यस और नो? अगर मुझे यही पता है कि मैं जो बोल रहा हूं और मैं लिख रहा हूं वही गलत है, क्या मैं कॉन्फिडेंस फील कर सकता हूं? यस और नो? कितने लोगों को ये चीज लगी कि हाँ यार, कि अगर मैं, आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर कोई इंसान की इंग्लिश करेक्ट नहीं है, क्या अगर वो क्विक है, डज इट मैटर? डज इट मैटर? क्या मैं बहुत तेज इंग्लिश बोल रहा हूँ एंड आई एम स्पीकिंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश, डज इट मैटर? क्या आपको मेरी स्पीड अच्छी लगेगी? द आंसर इज नो। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और मेरी इंग्लिश गलत है, विल इट मैटर? द आंसर इज नो। बहुत लोगों ने आंसर लिखा स्पीक एंड राइट जीरो, बिकॉज द पॉइंट इज अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो मतलब इससे अच्छा तो मैं नहीं लिखता। यस नो? आया सबको समझ में? तो इस पॉइंट से एक चीज क्लियर होती है कि अगर किसी को भी अपनी इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उसको करेक्ट होना बहुत जरूरी है। यस नो? हुआ? क्लैरिटी हुआ? और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप में से जितने सारे लोग हैं, आप में से अभी 95% लोग इंग्लिश में करेक्ट नहीं होंगे, ये भी रियलिटी है। यस और नो? इज इट मेकिंग सेंस? सिंपल सी बात ये है। कितने लोगों को ये चीज लगी? आप में से अभी 95% लोगों, अगर मैं आपसे पूछूं, एंड बी ऑनेस्ट यार, क्योंकि टीचर एंड स्टूडेंट का एक ही रिलेशनशिप होता है, ऑनेस्टी का। अगर तुमने यहाँ पे झूठ बोल दिया तो फिर तुम, किसका फायदा, किसका नुकसान होगा? इट वुड बी योर्स। कितने लोग एग्री करेंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या तुम इंग्लिश लैंग्वेज में करेक्ट हो, द आंसर वुड बी नो। 95% पीपल विल से नो। अब यहाँ पे फंडा क्या है? अब यहाँ पे फंडा क्या है? हेयर यू गो। अब हमें अपनी इंग्लिश को क्या करना है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इस चीज को समझ लो, समझो। दैट्स द वे इंग्लिश शस्त्र कम्स। आपको पता है इंग्लिश शस्त्र क्या कहता है? कि जो लूजर्स है ना, वो डायरेक्टली सोचते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। दिस इज द लूजर्स अप्रोच। बट जो विनर्स होते हैं ना, वो पता है क्या सोचते हैं? कि सबसे पहले ना मैं करेक्ट होऊंगा। यस सुनो? कितने लोगों ने कभी इंग्लिश को इस गेम के वे से नहीं लिखा था, नहीं कभी सोचा नहीं था? यस नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? सबको ये चीज समझ में आई? यस नो? कितने लोगों को ये चीज कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? द पॉइंट ओवर इज, इट्स वेरी सिंपल। इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इंग्लिश रॉकेट साइंस उन्हीं लोगों के लिए है जो डायरेक्टली फ्लुएंट होना चाहते हैं। इंग्लिश बिल्कुल उन लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप हो जाती है जो इस फ्लुएंसी को ना ब्रेक करते हैं। दो या तीन पार्ट्स में आओ करते हैं ब्रेक। सो एक सिंपल सी अप्रोच ये है कि सबसे पहले मुझे अपनी इंग्लिश में करेक्ट होना है। अगर मैं करेक्ट नहीं हूं, दिस इज माई विजन। बिना रुके बोलना, दैट इज नॉट अ विजन, वो ख्वाहिश है। ख्वाहिश अपने आप पूरी होती है जब गोल्स पूरे हो जाते हैं। सिंपल। द सेकेंड गोल वुड बी कि चलो अब मैं करेक्ट हो गया, मुझे अपनी स्पीड को क्विक करना है। एंड देन इट्स द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। आया समझ में? सबको समझ में आया? लेट्स ब्रेक इट इनटू द पार्ट्स ना। यार तुम गाड़ी चलाना भी सीखते हो, तुम डायरेक्टली गाड़ी नहीं सीखते ना। पहले गियर चलाना सीखोगे, फिर रेस दोगे, फिर प्रॉब्लली ब्रेक्स लगाओगे। उन सबका कॉम्बिनेशन तुम्हें फ्लुएंट बनाता है। व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम लोग फ्लुएंसी को तभी हासिल कर सकते हो जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो। एंड इस कॉम्बिनेशन को अच्छा करने के लिए पहले मुझे करेक्ट होना पड़ेगा, फिर क्विक होना पड़ेगा, एंड फिर मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? आया सबको समझ में? और मैं आपको एक चीज और बताऊं, व्हेन यू गाइस स्पीक, आप लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते होंगे अभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप लोग अभी करेक्ट नहीं बोलते हैं, और आपको यह भी पता है कि चल मैं करेक्ट बोल भी रहा हूं ना, मेरी स्पीड बहुत स्लो है। यस और नो? यही रीजन है ना। कॉन्फिडेंस तुम क्यों नहीं फील कर रहे भाई? तुम बोलना तो चाहते हो, दिमाग तो बोल रहा है कि बोल बोल बोल, but why is it so that you are not able to speak with a lot of confidence? Because you know it, कि what I will speak that might be wrong, or even if it would be right, that might be slow. That is what the point is. सबको आया समझ में? Right? ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई है? And that is what English Shastra is all about. You achieve your goal number 1, then you need to achieve your goal number 2, and then you achieve your goal number 3. This is the winner's approach, and this is, और कुछ लोग ये सोचते हैं मैं तो डायरेक्टली कॉन्फिडेंट में आऊंगा, लाइक क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉन्फिडेंट बनूंगा। और डायरेक्टली कॉन्फिडेंट बनने के लिए हमें ना एक बहुत अच्छी एडवाइस दी जाती है कि इफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, स्पीक मोर एंड मोर। यस और नो? कितने लोगों को ये एडवाइस पता है कि अगर हमें हमें हमारा इंडिया क्या एडवाइस देता है कि यार अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, स्पीक मोर एंड मोर।
यार ये कितनी फनी बात है ना कि टीचर्स तो ये वाली बात बोल के चले जाते हैं, पर जब हम लोग जब आप और मैं प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों से 2 लाइन से ज्यादा निकल ही नहीं पाता है ना। लाइक हमें टीचर्स तो बोल के चले जाते हैं कि अमन, इफ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक मोर एंड मोर। मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मोर एंड मोर तो भूल ही जाओ, 2 वर्ड्स के बाद इंग्लिश वाज गॉन। कितने लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, ये क्यों है? क्योंकि हम डायरेक्टली चेस कर रहे हैं कॉन्फिडेंस को। यार हमें वो नहीं करना जो हम चाहते हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, हमें वो नहीं करना जो हम चाहते हैं, हमें वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है। सिंपल सी बात है ना। अगर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए तो हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं पागलों की तरह कॉन्फिडेंस के पीछे भाग रहा हूं। कितने लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं? दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज। अब आप देखना, मैं आपको एक क्लियर कट बात बताऊं, इफ यू रियली वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर टाइम पास नहीं करना, टाइम पास कर लिया ना, 20-25 साल दे दिए, नहीं आए ना फ्लुएंसी, नाउ लेट्स प्ले अबाउट द रियल गेम, लेट्स टॉक अबाउट द रियल शिट। Here we go. What if I tell you the first truth of fluency? इसका स्क्रीनशॉट लगेगा, ठीक है? जब ये पूरा समझाऊंगा, सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने इधर चिपका दो, राइट? ताकि आपको पता रहे what exactly is going to be the right way. चलो, this is what we have learned from after research of 5 to 7 years. इधर देखो, पता है फ्लुएंसी का एक ही ट्रूथ है कि जो इंसान अपनी इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए 100% एफर्ट्स देगा, ये बात तो तुम सब लोग जानते हो कि तुमने अपनी इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए 100% एफर्ट्स नहीं दिए अभी तक। ये सुनो, हाँ या ना? ये सच्चाई है। कितने लोग मानते हैं कि तुम लोगों ने हमेशा कॉन्फिडेंस के पीछे भागे हो, और क्या कभी सोचे कि यार मैं सही भी तो होना चाहिए ना? ये सच्चाई है। कुछ लोग नो बोल रहे हैं, झूठ, जैसे मैं मान रहा हूं, नहीं मान रहा। जो लोग यस बोल रहे हैं वही सच्चे हैं। इधर आओ, देखो, फ्लुएंसी का एक सिंपल लॉ है। अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, अगर तुम अपनी इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए 100% एफर्ट्स दोगे ना, उसके बाद क्विक एंड कॉन्फिडेंट करने के लिए अगर 30% भी एफर्ट्स दोगे, यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। करेक्ट करने के लिए क्या करना है मैं बताऊंगा, सबा, स्टेप बाय स्टेप। सबा 20-25 साल हो गए, फ्लुएंट नहीं बन पाए ना, तो 15 मिनट में हो जाओगे क्या? मुझे मौका तो, मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा करेक्ट कैसे होना है, सबको बताऊंगा क्विक एंड कॉन्फिडेंट कैसे होना है। बट पहले ये तो समझ लो, राइट? अभी तक तो फ्लुएंसी के पीछे थे, अभी समझ लो सब। रिलैक्स, सो वी नो हाउ टू ट्रेन, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? इधर देखो, नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज, आपको ये लॉजिक समझ में आया कि फ्लुएंसी क्या चाहती है? कि भाई आप लोगों को 100% एफर्ट्स देने करेक्ट होने के लिए, अगर क्विक एंड कॉन्फिडेंट को 30% भी एफर्ट्स दोगे तो फ्लुएंसी आ जाएगी। पर हम वो थोड़ी करते हैं जो फ्लुएंसी को चाहिए, हमें तो वो करते हैं जो हमें चाहिए। लाइक व्हाट डू वी डू? दिस इज व्हाट यू गाइस वांट, राइट? हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए बॉस कि मैं फटाफट कॉन्फिडेंटली एंड क्विकली बोलूं। तभी क्या होता है कि हम इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए 30% एफर्ट्स देते हैं, पर क्विक एंड कॉन्फिडेंस करने के लिए अगर आप 30,000% भी एफर्ट्स दे दो, आपको फ्लुएंसी नहीं आएगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस डू। आया मजा? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इट्स वेरी वैल्यूएबल। लाइक आपको लगे ना लगे, बट ये वैल्यूएबल है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक इट्स वैल्यूएबल? देखो यार, इंग्लिश में तुम्हें पढ़ा तो कोई भी दे, यूट्यूब गूगल भरा हुआ है, राइट? द पॉइंट इज पढ़ना क्या है एंड कैसे, दैट इज द ट्रिक। ये आप, यू नो, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू कम हियर एंड बिहेव लाइक दिस वे। Okay, guys, I'm your spoken English trainer. Okay, I'll make you fluent. Everyone, take out your pen and paper. Today, we will understand one grammar topic which is known as tenses. Okay, so look, tenses, it's very important. Subject means the someone who is doing the action. This is shit. This is shit. Double shit. How many of you guys are totally bored of these particular things, right? Subject plus object plus verb. Okay, verb. Okay, object means the someone, the action is happening. Look, I am fluent, I'll also make you fluent. This is double shit. You need to get off from this, right? ठीक है, इससे बाहर निकलो यार. This is the clear case of black zone. Now coming to the point, and the point is, while I do the right, ठीक है, the point is, while I do the acting of anyone, I am not here to belittle anyone. मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा. And what if I tell you, ये सारी की स्ट्रैटेजीज मैं खुद भी करता था. मैं खुद भी YouTube पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ग्रामर की बुक्स पढ़ रहा हूँ. पर क्या कभी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ने हमें हेल्प किया है हमें कंफ्यूज करने के अलावा? आप मुझे बताओ ना. व्हाट इज योर इनर कॉलिंग ऑफ दैट? आप लोग मेरा पेन समझ पा रहे होंगे ताकि मैं आप लोगों का पेन समझ पाऊं. सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के रूल्स याद हो गए क्या? जब मैं बोल रहा हूं आई एम थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, द आंसर इज बिग नो. फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? पढ़ने की जरूरत क्या है? मार्क्स आने थे, आ गए, अब तो फ्लुएंसी चाहिए ना. वेलकम टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश. कमिंग बैक टू हियर, इतना ये लॉजिक सबको समझ में आया?
मुझे बताओ, लॉजिक सबको समझ में आया? नाउ मूविंग अहेड, आपको पता है लोग अगर आपको ये एडवाइस करें ना, देखो यार एक सिंपल सी बात है, व्हेन यू गाइस स्पीक, आप 2 मिनट बोलते हो, आप रुक जाते हो, उसका आपको रीजन पता है, ठीक है? सेंटेंस कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा अमन। द पॉइंट इज, यार देखो, मैं आया हूं तुम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। पहले मैं एक बार ये माइंडसेट क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं बताऊंगा करेक्ट कैसे होना है, और आज ही बताऊंगा। थोड़ा मुझे वक्त तो दो यार। राइट, अभी तुमने अपने आप को तो 25 साल दे दिए, तुम मुझे 30 मिनट भी नहीं दे पा रहे हो, ऐसा तो मत करो ना, ठीक है? मैं उतना 25 साल भी नहीं लूंगा, थोड़ा सा तो टाइम मुझे दो ना। हैव पेशेंस, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग यार, ठीक है? सबको समझ में आया ना? आई एम हेयर टू सर्व यू ना, सिंपल सी बात है। देखो यार, एक चीज और है, आप लोगों की ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती होगी कि व्हेन यू ट्राई टू स्पीक ना, आप बोलते तो हो पर 2 मिनट बोल के रुक जाते हो, यही होता है ना? एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग हिंदी, देन यू आर स्ट्रगलिंग विद वर्ड्स, और आप कंफ्यूज हो, और लोग आपको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस की कमी है यार, प्रैक्टिस की कमी है। दिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अगेन बुलशिट स्टेटमेंट। प्रैक्टिस कैन नेवर मेक यू परफेक्ट। द यू नो द राइट प्रैक्टिस एज पर योर लेवल इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। लेट्स सपोज आप और मैं किचन में जाते हैं, राइट? दिस इज किचन एंड आई ओपन द टैप। द मोमेंट आई ओपन द टैप ना, पानी यार 2 मिनट आया, उसके बाद ना पानी आना बंद हो गया। व्हाट कुड बी द रीजन? एनीवन हेल्प मी आउट? पानी 2 मिनट के लिए आया, उसके बाद पानी आना बंद हो गया यार, व्हाट कुड बी द रीजन? एनीवन कैन हेल्प मी आउट? राइट, समवन इज सेइंग वाटर टैंक खत्म। और कोई रीजन है क्या? जैसे मैंने टैप ओपन की, जैसे ही ओपन की पानी 2 मिनट आया, फिर यार बंद हो गया। व्हाट कुड बी द रीजन? समवन इज सेइंग टैप कैन बी ऑफ। नहीं, टैप तो ओपन की है, तभी तो 2-3 मिनट पानी आया। सिंपल सा एक रीजन ये है, बेसिक रीजन क्या है, कि ये जो मेरा वाटर टैंक है ना, ये खाली है, ये खाली हो चुका है। यस और नो? कितने लोग इस चीज को एग्री करेंगे कि ये जो मेरा वाटर टैंक है, इसमें वाटर ही नहीं है? सिंपल सी बात ये है। अब ना मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। इमेजिन करो ये तुम्हारा ब्रेन है, इमेजिन करो ये तुम्हारा ब्रेन है, और ये जो पानी है ना, ये तुम्हारी इंग्लिश है, और ये जो टैप है ना, ये तुम्हारा माउथ है। अब आया समझ में कि तुम 2 मिनट बाद बोलने के बाद क्यों अटक जाते हो? आया समझ में? क्योंकि हमारे दिमाग में इंग्लिश की करेक्ट नॉलेज ही नहीं है। कितने लोग एग्री करें कि हमें इंग्लिश का पता ही नहीं, हमें इंग्लिश के बारे में कुछ पता ही नहीं है? दिस इज द रियलिटी। आया समझ में? सिंपल सी बात है। क्यों आप 2 मिनट बाद क्यों ये टैप? एंड सब लोग क्या बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बोलो। अरे जब तक दिमाग में मेरे इंग्लिश ही नहीं है, तो मेरे मेरे ज्यादा बोलने से क्या होगा? मैं टैप को पूरा खोल देता हूं, पानी आने लग जाएगा क्या? द आंसर इज द आंसर इज नो। समवन इज सेइंग, ईशानी सिंह इंग्लिश इज ह्यूज। ईशानी, इंग्लिश तो ह्यूज है, बट स्पोकन इंग्लिश इज वेरी स्मॉल, ठीक है? क्या हम यहाँ पे इंग्लिश की बातें कर रहे हैं? नो, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट फ्लुएंट की इंग्लिश। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, इतना आपको समझ में आया ना? एंड सबसे डेंजरस सिचुएशन तो यही है। थोड़ा अभी बोर कर रहा हूं, अभी जब मैं आप लोगों को करेक्ट देने की ट्रेनिंग करूंगा, यू गाइस ऑल विल बी लविंग इट। चलो इधर आओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग इट? बाय द वे, लेट मी नो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एंजॉयिंग इट? जस्ट टाइप द वर्ड एंजॉयिंग इट। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार, आज हम कुछ अलग सीख रहे हैं? वरना अगर तुम ये नहीं बोलोगे ना, यू गाइस आर एंजॉयिंग इट, तुम्हें टेंसेस पढ़ाने लग जाऊंगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की तरह। पढ़ोगे? टेंसेस पढ़ोगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की तरह? मुझे बताओ, बोर करूं तुम्हें? राइट, करूं बोर? बताऊं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज बुलशिट। राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? इधर आओ। ग्रेट, यू गाइस आर सपोर्टिंग मी। यार ये एक सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन है कि हमें ना अपनी टैंक की रियलिटी नहीं पता होता, हमें अपने ब्रेन की रियलिटी नहीं पता होता, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेरा माउथ है ना, मेरा जो माउथ है, वो फटाफट कंटेंट जो है, इंग्लिश कंटेंट है, वो डिलीवर करता रहे। द आंसर इज बिग नो। ये चीज कभी हो नहीं सकती। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि पहले मुझे अपने ब्रेन पे काम करना है, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट। पहले मुझे ब्रेन पे काम करना है, फिर मैं इस पर्टिकुलर पाइप से, इस पर्टिकुलर माउथ से इंग्लिश निकालूंगा। राइट, एंड अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, आप लोगों के साथ में सॉल्व करूंगा। बट अभी दो कंसेप्ट माइंडसेट के और बताएं, और बचे हैं। लेट मी कंप्लीट दैट। एंड एक चीज और है, आप में से ना बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ना माइंडसेट में, जिनको ना आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा, ठीक है यार, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा ब्रेन खाली है, अब मुझे बताओ ब्रेन को भरना कैसे है। रिलैक्स, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी इतना भी एक्साइटमेंट सही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इज गोइंग टू बी द की। राइट, और वैसे भी जिसको जल्दी है,
कोई बोर हो रहा है तो वो जा सकता है आराम से, देयर इज नो कंपल्शन, राइट, एज सिंपल एज दैट। ओके, बिकॉज वी नो दैट व्हाट वी आर डिलीवरिंग। आप लोग विश्वास रखो, आप लोगों का लाइफ बदलने वाला है यार, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ अब एक सिंपल सी चीज और है, राइट, लेट मी क्विकली मेक यू अंडरस्टैंड, आप ये लोग सब समझोगे। देखो, फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू व्हाट, फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक। एंड हम राइट एंड स्पीक कैसे करते हैं? माउथ से एंड हैंड से, यस और नो? हम राइट एंड स्पीक कैसे करते हैं? माउथ एंड हैंड से। एंड ये दोनों चीजें आर लाइक अ टैप फॉर अस, एंड दीज टैप्स आर कनेक्टेड टू वन बीकर। अगर ये मेरा एम्प्टी है तो मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन पाऊंगा, बट दिस इज द वे आई विल बी एबल टू बिकम। पहले मैं अगर अपने ब्रेन को फिल कर देता हूं, उसके बाद ही मैं अपने टैप से लाइक आई कैन टेक आउट थिंग्स। इतना सबको समझ में आया? राइट, ठीक है, इतना सबको समझ में आया? मुझे बताओ, आर वी गाइस ऑन द सेम पेज? अब वक्त आ चुका है आप लोगों के टारगेट को सेट करने का। व्हेन आई से टारगेट को सेट करने का, दिस इज द टारगेट। देखो, आप में से मैक्सिमम लोग अभी यहां पे हैं, यस और नो? गलत। आप में से मैक्सिमम लोग अभी यहां पे हैं, पहले तो वापस आओ। आप में से मैक्सिमम लोग अभी यहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले वापस आओ। यू नो, कम टू द बेसिक्स, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू द बेसिक्स। द पॉइंट इज, सबसे पहला गोल मेरा क्या होना चाहिए कि मुझे अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है। इंग्लिश को करेक्ट करने का मतलब क्या है? टू फिल अ वाटर टैंक। वाटर टैंक को फिल करना मतलब अपने ब्रेन को सबसे पहले फिल करना। then I'll be moving towards my second goal, which is to become the confidence। मतलब ऑब्वियसली ये तो एक जर्नी का प्रोसेस है, ये एक जर्नी का पार्ट है। अभी मैं आपको और समझाऊंगा। इन शॉर्ट बात ये है कि आप लोगों के लिए मैंने इंग्लिश फ्लुएंसी को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे? सबसे पहला टारगेट आप सब लोगों का होना चाहिए कि हमें सबसे पहले करेक्ट होना है। कितने लोगों ने कभी भी इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचा था? मुझे बताओ, लेट मी नो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव नेवर थॉट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लाइक दिस वे? हमें क्या लगता था इंग्लिश लैंग्वेज मतलब बोलो 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 बोलो, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बोलो बोलो, शीशे के सामने बोलो बोलो, इंग्लिश के मूवीज देखो बोलो बोलो। दैट्स नॉट द वे। लेट्स कम आउट फ्रॉम दोस थिंग्स। सबको अपना पहले तो टारगेट पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी, मुझे नहीं बोलनी ही नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए ही नहीं, मुझे स्पीड चाहिए ही नहीं। मेरा पहला गोल क्या है कि मुझे करेक्ट होना है। यस और नो? आया सबको समझ में? ब्रेक कर देते हैं ना। क्या करोगे इतनी जल्दी फ्लुएंट बन के? अभी तक नहीं बन पाए ना, जल्दबाजी में क्या हुआ, निकल गए 25 30 40 साल। आ गया ना सबको समझ में? इधर देखो ना, सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ कि मुझे करेक्ट होना है बॉस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लाइक दिखना, राइट। कभी कभार किसी चीज को पाने के लिए ना किसी चीज को छोड़ना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट, दिस इज लाइफ। कभी कभार अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने छोटे मोटे गोल्स को त्यागना पड़ता है। You need to understand in a smart way, guys. Any sixth class student can understand it. पहली बात आपको क्या करना है? आपको अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है। अगर आप करेक्ट हो तो आपका जो सेकंड गोल है वो होना चाहिए क्विक एंड कॉन्फिडेंट का। इतना समझ में आया कि पहला गोल आप सब लोगों का क्या? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो करेक्ट नहीं है? तो उनको पहले करेक्ट करना है। आपका टारगेट फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी तो अपने आप आएगी यार, आपको वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है। सिंपल, समझ में आया? सबको समझ में आया? एक ना फनी एग्जांपल है जो रह गया, वो मैं देना चाहता हूँ, राइट, मैं आपको देना चाहता हूँ। एक सेकेंड, लेट मी गो बैक। सबको ये वाला एग्जांपल तो समझ में आया था ना? सबको ये वाला एग्जांपल समझ में आया था ना? एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आप में से कितने लोगों को ये चीज सच में पता है कि दैट टुडे इज 12th of July एंड इट्स माय बर्थडे टुडे, बाय द वे, राइट? सो इवन ऑन माय बर्थडे आई एम टेकिंग द सेशन। सो द पॉइंट इज, एक चीज को मैं आपको समझाता हूँ, राइट। अब बर्थडे विशेस आएंगी, आई डोंट नीड बर्थडे विशेस अभी, अभी मैं लूंगा आपको, बट रिलैक्स। व्हाट इफ आई टेल यू, आप इमेजिन करो कि आपको मुझे एक बर्थडे गिफ्ट देना है, राइट, एंड इट्स ट्रू, टुडे इज 12th of July एंड इट्स माय बर्थडे टुडे, राइट? ओके, सो द पॉइंट इज कि आप इमेजिन करो कि आप लोगों को मुझे बर्थडे गिफ्ट देना है। क्या आप मुझे बर्थडे गिफ्ट वो दोगे जो आपको पसंद है? नो, आप मुझे बर्थडे गिफ्ट वो दोगे जो प्रोबेबली मुझे पसंद है, क्योंकि आप मेरे लिए सोच रहे हो ना। यस और नो? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? तो उसी तरीके से अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए तो फ्लुएंसी के बारे में सोचना है, ये नहीं जो आपको चाहिए। मे बी आपने मुझे गिफ्ट किया एक परफ्यूम, वो आपको पसंद है, पर हो सकता है मुझे पसंद ना हो, right? So you need to be very clear in your brain. So that would be the example, right? Okay, and it's true, today is my birthday, right? Okay, yeah, here we go. Now moving ahead, मूविंग हेड। इतना सबको समझ में आया? अब आप सब लोगों के टारगेट फिक्स हो गए हैं। अब मुझे आपको क्या पता है फिक्स करना है कि व्हाट टू डू। सब लोगों को अपने टारगेट फिक्स हो गए हैं, मुझे बताओ। सब लोगों के टारगेट फिक्स हो गए हैं, ठीक है?
कि मुझे या तो करेक्ट होना है या क्विक होना है। ये दोनों गोल्स इकट्ठे अचीव नहीं हो सकते बॉस, वन एट अ टाइम। नाउ अब अगर आपको करेक्ट होना है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। क्विक एंड कॉन्फिडेंट होना है तो क्या करना चाहिए। ये दोनों चीजें इज नाउ इक्वली इंपॉर्टेंट। रेडी फॉर इट? राइट, ठीक है, रेडी फॉर इट, हियर वी गो, रेडी फॉर इट। चलो अब समझते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ना हम अपने गोल्स को बहुत ही क्लियर करते हैं, एंड दीज ऑल आर गोल्स। ओके, इफ आई टॉक अबाउट आर गोल्स, कितने लोग एग्री करोगे कि आपका भी करेंटली इनमें से ही तीनों गोल्स होते हैं? इसके बाहर तुम्हारा कोई गोल नहीं होगा बाय द वे, राइट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? सिंपल सी बात है, आप में से बहुत लोग चाहते होंगे कि यार अमन, आई वॉन्ट टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग एंड ईमेल राइटिंग करते हैं, राइट? यस और नो, एक ख्वाहिश हो सकती है आप लोगों की कि यार अमन मुझे तो ना ईमेल राइटिंग करनी है यार, मैं व्हाट्सएप पे जब चैट करता हूँ ना, जब मैं ये एप्लीकेशन लिखता हूँ ना, तो मैं इंग्लिश में लिख पाऊं। यस और नो, कुछ लोगों को अपने इंटरव्यूज के लिए बड़े बड़े आंसर्स इंग्लिश में लिखने होते हैं। यस और नो, समवन इज सेइंग एसएसबी इंटरव्यू व्हाटएवर। यस और नो, हम ये चाहते हैं ना कि कुछ लिख पाए, मींस राइट कर पाए। द सेकंड थिंग वुड बी, सेकंड एंड थर्ड तो सबका कॉमन होता है, that Aman, I want to fluently talk over the call. Here, if someone is talking to me over the call, I should be good enough. I should be confident enough to reply the सामने वाला person, the other person in English. Simple सी बात है. And third would be very simple and easy. Speak confidently in front of people. Front of people like जैसे हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, जैसे इंटरव्यूज में बात करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बात करते हैं। आप में से कितने लोग इस चीज को एग्री करोगे कि देखा जाए इंग्लिश के तीन गोल्स ही हैं यार, छोटे छोटे? यस और नो, है ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि देखा जाए इंग्लिश के तीन गोल्स ही हैं यार? सिंपल सी बात यह है कि हमें ढंग से लिखना आना चाहिए, फोन पे बात करना आना चाहिए, एंड स्पीक करना आना चाहिए। इफ यू विल सी इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ना, ये हमारे गोल्स तो कम है, ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें मेरी प्रॉब्लम ज्यादा है। यस और नो, गोल्स तो कम है बट ये प्रॉब्लम भी तो है कि मैं अभी ये नहीं कर पाता, मैं अभी ये नहीं कर पाती, या मैं अभी ये नहीं कर पाता। यस और नो, कितने लोग इस चीज को समझ पाए कि मैं अभी ये नहीं कर पाता, मैं अभी ये नहीं कर पाती, एंड व्हाटएवर, राइट? हियर वी गो। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप इस चीज को समझना कि ना, लेट्स मेक अ प्रॉब्लम स्मॉल। अब ये तीनों हमारी प्रॉब्लम्स है ना, हम ये तीनों चीजें नहीं कर पाते। लेट मी मेक योर प्रॉब्लम स्मॉल। हाउ? हियर वी गो। यार इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इंग्लिश के छोटे से तीन गोल्स बनाओ कि मुझे अपना टेक्स्ट इंप्रूव करना है, मुझे अपना ऑडियो इंप्रूव करना है, एंड वीडियो इंप्रूव करना है। दिस इज वेरी गुड कंसेप्ट। अब आप लोगों का दिमाग खुलने लगेगा। इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करो, तभी आएगी इंग्लिश में यार फ्लुएंसी। सो द पॉइंट इज, आपको इंग्लिश को अगर इंप्रूव करना है तो तीन चीजें मास्टर करनी है। द टेक्स्ट पार्ट, जैसे हम लिखते हैं, द ऑडियो पार्ट, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, एंड द वीडियो पार्ट। इट कुड बी अ वीडियो कॉल और फेस टू फेस इंटरेक्शन विद एनी डैम पर्सन, योर इंटरव्यूज, योर पब्लिक स्पीकिंग, योर बॉस के साथ मीटिंग, योर डेट, व्हाटएवर, राइट? अब ना, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। यार अभी तक समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चैट्स खोलो, चैट्स खोलो रजत। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको लग रहा है कि ओ अमन इज जस्ट स्पीकिंग। आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो? लेट मी नो। एनर्जी से बाहर आके क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है? वापस चला जाओ एनर्जी के जोन में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चैट क्लोज कर दो। थैंक यू। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। ओके, अब तीन गोल्स हैं, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। अब ना, लेट मी टॉक अबाउट योर टेक्स्ट पार्ट। हम लोग टेक्स्ट करते कैसे हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज आज ना मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरा नहीं, आज मेरे दोस्त का, रजत, रजत इज विद अस, राइट? चलो अजय जायसवाल, राइट? एक ऐसी मैं स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं। अब ना अजय जायसवाल को मुझे क्या करना है, एक बर्थडे गिफ्ट लिखना है, बर्थडे मैसेज लिखना है। अब मुझे पता है गूगल यूट्यूब से फॉरवर्ड मैसेजेस वो तो है, पर मैं ना अजय को ना अपने दिल की बात लिखना चाहता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब दिस इज द वे आई विल ट्राई टू राइट, हैप्पी बर्थडे अजय, कॉमा। यहां तक तो सब लोग लिख लेंगे। प्रॉब्लम अब उसके बाद है। यार मैं चाहता हूं कि तुम जीते रहो, यू कीप लिविंग। यार तुम जीते रहो सालों साल, यू कीप लिविंग। क्या होगी यार इंग्लिश कि हैप्पी बर्थडे अजय तो ठीक है, यू कीप लिविंग, यहां तक यू कीप लिव आएगा, लिविंग आएगा, पता नहीं यार। यू कीप लिव, एक मिनट गूगल कर लूं क्या? नहीं यार, आप लोग देख रहे हो, अरे गूगल भी नहीं कर सकता, ठीक है। यू कीप लिविंग
ऑन एंड ऑन, पता नहीं ऑन सही है, बैक स्पेस यू कीप लिव होना चाहिए कि यू कीप ग्रामर, पता नहीं ग्रामर सही। अरे यार छोड़ छोड़ यार, इंग्लिश कब आएगी। चल यार हिंदी में ही लिख लेता हूँ, वो कहेगा लेट विश की है, बैक स्पेस हैप्पी बर्थडे अजय तक तो ठीक है यार, इतना तो इंग्लिश आता है मुझे, राइट। पर तुम जीते रहो, यू कीप ऑन लिविंग, यार आई एम वेरी कंफ्यूज, हिंदी में ही लिख लेता हूँ। अजय भाई जन्मदिन की मुबारक, हैप्पी बर्थडे, आप सालों साल जीते रहो, सेंड। अरे यार इंग्लिश कब आएगी, उस दिन पेपर में भी नहीं लिख पाया था यार मैं। चल ठीक है यार लिखूंगा। चल यार अजय का कॉल ही आ गया, चलो। ओके, स्टॉप स्टॉप, लेट मी ओपन अप द चैट बॉक्स, राइट, लेट मी ओपन अप द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बातें की, आप लोग यही बातें अपने दिमाग के साथ करते हो कि ओ अच्छा वो वर्ड उस दिन फैबुलस पढ़ा था, मैं फैबुलस गूगल कर लेता हूँ, कोई तो ऑटो करेक्ट ही कर लेते हैं हम, यस और नो, राइट। और ये एक ऐसी शर्म है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, खुद ही अंदर घुट के मर रहे हैं, यस और नो। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है कि हम ये चीज अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम कभी अपने भाई को नहीं बोलेंगे अबे तुझे मैसेज लिखने के लिए मुझे 5 मिनट लग गए यार, नो, ये चीज अंदर ही अंदर हमें खा रही है। आई अंडरस्टैंड इट, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। गूगल यूट्यूब कब तक यूज करोगे गाइस, अब नाउ द द जमाना इज टोटली एडवांस, द चैट शुड बी क्लोज। एक सिंपल फंडा, व्हाई आई एम लेटिंग यू नो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। मैंने एग्जांपल आपको पता है क्यों दिया। अब आप कहोगे ये तो एक्टिंग हो गई, सीखने को क्या मिला, अब मिलेगा, एंड योर माइंड विल बी टोटली ब्लोइंग अवे। ताफ प्रिंसिपल आ रहा है गाइस, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कांसेप्ट्स, एंड ये जोश टॉक ने भी तभी रिकॉग्नाइज किया था, समझना इसको। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्या बताना चाहा है कि जब कोई भी टेक्स्ट करे, एंड यहां पे बात आपकी नहीं है मेरी नहीं है, कोई भी, लाइक इवन नरेंद्र मोदी करे, शाहरुख खान करे, सलमान खान करे, विराट कोहली करे, कोई भी करे, प्रियंका चोपड़ा करे, आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि जब हम लिखते हैं ना, आप मैं कोई भी, हम सब लोगों के पास 5 से 10 सेकेंड एक्स्ट्रा है टू थिंक, यस और नो, टू इवन चीट, टू इवन यूज आवर ब्रेन, यस और नो। जब हम लिखते हैं, जब लिखने वक्त हमारे पास, जैसे मैंने उसको एक बर्थडे का मैसेज लिखना था तो वो 1 मिनट का मैसेज पर मैं 2 3 4 मिनट ले सकता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑडियो एंड वीडियो, हमारे पास एक भी सेकंड का टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा थिंकिंग के लिए। लेट्स सपोज अजय मेरे अब सामने ही आ गया, अब मुझे अगर इसको विश करना है तो ऑन द स्पॉट बोलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या, अजय हैप्पी बर्थडे, आई वे वे वो, ऐसा नहीं हो सकता। इट विल बी लाइक, सबको ये चीज समझ में आया ना, सबको ये चीज समझ में आई कि when I am writing, I have around 5 to 10 seconds extra. But when I'm doing the audio and the video, right? अगर मैं अजय को वीडियो कॉल कर रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, I have 0 second extra. Yes or no? Because if I'm speaking in English, the moment I'll stop, you need to speak on the spot. अगर तुमने मेरी बात खत्म होने के बाद जवाब नहीं दिया, मुझे क्या लगेगा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। सिंपल सी बात है, किसी को भी लगेगा। अब अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया ना, यू गाइस आर गोइंग टू बी लविंग दिस पर्टिकुलर फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, एंड दिस इज द प्योर गोल्ड फॉर द पीपल जिनको सच में फ्लुएंट बनना है। लाइक द पीपल दोज हु जस्ट वांट टू डू द टाइम पास, वो तो जिंदगी भर टाइम पास ही करते हैं, बट द एक्चुअल पीपल दोज हु वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, देखो एक ना क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्पीक क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि यार अमन हम ये कैसे स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्विकली करें। ये क्वेश्चन गलत है। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड मुझे उसका आंसर ऑनेस्टली चाहिए। आपको पता है राइट क्वेश्चन क्या होता है, एंड उससे मैं कनेक्ट करूंगा। राइट क्वेश्चन इज दिस, मुझे आप लोगों की ना ये रियलिटी जाननी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अराउंड 10 में से 8 या फिर 9 या फिर 10 सेंटेंसेस को आप लोग करेक्टली राइट कर लेते हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, तो लिखना यस एल्स लिखना नो, यस या नो। 50-50 का जमाना नहीं है, जो 50-50 कह रहा है उसका आंसर नो ही है। मुझे सब लोग आंसर दो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि अगर मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया, हिंदी में बोला कि यार अजय को लिख दो, तू लंबा जीता रहे और जीता ही रहे, और मैं कल तेरे लिए गिफ्ट लाऊंगा, प्लस तू अपने साथ अपने फैमिली को भी मेरे घर लेके आइयो। अभी इंग्लिश में लिखना, कितने लोग 1 सेकंड में करेक्टली लिख लेंगे, मुझे यस या नो में आंसर चाहिए। एवरीवन क्विकली बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलना यार प्लीज। झूठ बोलोगे तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। राइट, सिंपल सी बात है। राइट, वो एक गाना है ना कि इसमें तेरा घाटा मुझे, लाइक मेरा कुछ भी नहीं जाता, इट्स लाइक दैट। क्विकली गाइस, एवरीवन
Everyone, quickly. Everyone, I need the answers in yes या no. अगर श्योर नहीं हो तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा नो ही है. फटाफट आंसर दो. रजत चैट्स क्लोज. रजत चैट क्लोज. ओके. नाउ गाइज, एज मैंने आप लोगों के आंसर्स को स्टडी किया, आप लोगों ने भी एक दूसरे के आंसर्स देखे होंगे. 85% पीपल ने क्या बोला? नो. यस और नो. झूठ तो नहीं लिख रहा, आप लोगों के सामने ही था. यस और नो. एंड 15% लोगों ने क्या किया? सिर्फ आंसर दिया यस. दिस इज द रियलिटी. दिस इज द रियलिटी. समवन इज सेइंग कि मैं लिख तो लेती हूं. लाइक पूजा इज सेइंग कि आई कैन राइट, बट मुझे ये नहीं पता वो सही है गलत है. इसका मतलब यही हुआ कि क्लैरिटी नहीं है. मतलब आप ढंग से नहीं लिख पाते. सिंपल सी बात यही है कि लिख तो मैं भी लेता हूं चाइनीज, पर मुझे यही नहीं पता गलत है या सही है. इसका मतलब गलत ही है. सिंपल सी बात यही है. नाउ मूविंग अहेड दैट, I would love to now introduce one legendary TAF principle for you guys. आपके इंग्लिश को स्टार्ट करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता. एंड दिस इज अ लेटेस्ट कंसेप्ट. दिस TAF प्रिंसिपल गोज लाइक टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो. पहली चीज तो ये, लेट्स सपोज दिस इज यू, राइट? लेट्स सपोज दिस इज यू. अब मैंने आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछा कि कैन यू टेक्स्ट, क्या तुम टेक्स्ट कर सकते हो? आपने कहा नो. 85% लोगों ने क्या आंसर दिया? कि हम तो लोग अभी टेक्स्ट ही नहीं कर सकते. एक आपको रियलिटी बताऊं, जो ये 85% लोग हैं जिन्होंने टेक्स्ट में आंसर नो बोला है, आप सब लोग मेरे साथ कनेक्ट करोगे कि अभी आपका आंसर ऑडियो में भी नो होगा एंड वीडियो में भी नो होगा. यस और नो? आप लोग अभी स्पीक भी नहीं कर पाते होंगे. सिंपल सी बात ये है. यस और नो? ये रियलिटी है. कितने लोग एग्री करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? कितने लोग नहीं कर पाते? मुझे बताओ. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर टेक्स्ट में नो दिया, पर अगर मैं ऑडियो एंड वीडियो पूछता तो इसमें भी आंसर नो ही आता? Agreed? Yes or no? Yes or no? Someone is saying nervousness, someone is saying agreed. Now here is the funda. Chats को close करो और अब आप इंग्लिश को सही तरीके से समझो. And I would love to explain you. आपको पता है क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? पता है क्या है? कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग और वी आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस एज पर आवर लेवल एंड रियलिटी. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. लेट्स सपोज दिस इज वी. ये हम लोग हैं, आप और मैं, ठीक है? एंड जब भी हम बोलते हैं हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं. सिंपल सी बात है. और रियलिटी क्या है कि जब मैं कुछ भी टेक्स्ट करना चाहता हूं ना, कुछ भी, मैं अगर मैं आपको एक और भी सिंपल वे में लिखूं कि जब भी मैं कुछ भी राइट करना चाहता हूं, मैं अपने दिमाग को 5 से 10 सेकंड्स देता हूं सोचने के लिए. मैं अपने दिमाग को 5 से 10 सेकंड्स देखता हूं सोचने के लिए. रियलिटी क्या है? 10 सेकंड या चाहे मैं 2 मिनट भी सोच लूं, इतना सोचने के बाद भी मैं करेक्टली नहीं लिख पाता. दिस इज आवर रियलिटी. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारी रियलिटी है? कितने लोग? क्योंकि जो इंसान अपनी रियलिटी को फेस नहीं करता वो कुछ भी नहीं फेस कर सकता. चैट्स को ओपन करो, लेट अदर पीपल ऑल्सो सी. कितने लोग एग्री करेंगे कि ये रियलिटी नहीं है, ये मेरी रियलिटी है, आप लोगों की रियलिटी है? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फील इट्स योर रियलिटी? अब आपको पता है सबसे बड़ा पंगा क्या है? यू नो व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू स्वॉलो? ये मेरी रियलिटी है, पर मैं अपनी रियलिटी तो तब है ना जब मैं एक्सेप्ट करूं. मैं अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, पर मुझे लोगों ने बोला हुआ है कि बोलो, अरे फटाफट बात करो. अब हो क्या रहा है? जो इंसान 5 से 10 सेकंड में अभी ढंग से राइट जैसी सिंपल चीज नहीं कर पा रहा, वो अपने दिमाग को, क्योंकि उसको लोगों ने कह दिया कि आपको तो स्पीक करना है, अब वो क्या करता है? वो स्पीक करने की कोशिश करता है. आप लोग भी करते होंगे ना बोलने की कोशिश. गुड गुड, करनी चाहिए. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. बुलशिट. अभी अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, छोड़ दो करना. अपने दिमाग को प्रेशर में मत डालो. हो क्या रहा है? आप लोगों की अभी ये रियलिटी है कि आप 5 से 10 सेकंड में राइट नहीं कर पा रहे, पर आप अपने ब्रेन को फोर्स करते हो स्पीक करने के लिए. और यू ऑल नो व्हेन वी स्पीक वी हैव 0 सेकंड्स. हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है. आप मुझे एक बात बताओ कि जो लेट्स सपोज एक बच्चा है अमन, राइट? एक स्टूडेंट है अमन. अमन का दिमाग अभी 5 से 10 सेकंड या 2 मिनट में भी ढंग से तो राइट कर नहीं पा रहा. क्या वो 0 सेकंड्स में स्पीक जैसी चीज कर सकता है? द आंसर इज नेवर. सिंपल, इट्स प्रूवन. जो लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दिस इज बुलशिट स्टेटमेंट. अगर आप मुझे एक बात बताओ ना, मैं ढंग से राइट तो कर नहीं पाता, मुझे कुछ कंसेप्ट ही नहीं पता, पर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. मैं लगा हुआ हूं, मैं स्पीक कर रहा हूं. तुम लोगों ने भी बहुत कोशिश की होगी स्पीक करने की, रिजल्ट्स आए? द आंसर इज नेवर. कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? इन शॉर्ट बात क्या है? राइट? ठीक है.
सबको ये चीज, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर हैविंग दिस पर्टिकुलर वाव मोमेंट? कितने लोगों ने कभी भी लैंग्वेज के साइंस को समझा नहीं? दिस इज अ रियलिटी, राइट? संजीव इज सेइंग आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट. लुक संजीव, द पॉइंट इज कि आई एम नॉट हियर टू प्रूव हु इज राइट हु इज रॉन्ग. I'm telling you the reality because we are into the organization of making people fluent in English. So this is the pure gold, right? So इस चीज को रॉन्ग वही इंसान बोले जो 10,000 लोगों को फ्लुएंट पहले बना चुका हो. एज सिंपल इज दैट. यू नो द बॉटल इज डाउन. सिंपल सी बात है. सो एक सिंपल सी चीज ये है कि जो इंसान अभी 5 से 10 सेकेंड या 2 मिनट में राइट नहीं कर पा रहा, वो 0 सेकेंड्स में स्पीक कर ही नहीं सकता. वो स्पीक ही नहीं कर सकता. एज सिंपल एज दैट. ये मैं आपको इंडियन ओरिजिन के हिसाब से बता रहा हूं. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हियर वी गो. दिस इज द लेजेंडरी ताफ प्रिंसिपल. अब आप लोगों को समझ में आएगा व्हाट्स द मैटर. ठीक है, हियर वी गो. नाउ अंडरस्टैंड इट. अब आप इस चीज को समझो. आपको बताए इंडिया में क्या होता है कि हमें जब इंग्लिश में फ्लुएंट होना होता है ना, हम ऐसे होते हैं. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं यार मैं पहले एक बार अपना वीडियो ठीक कर लूं, लोगों के सामने मुझे बात करना आ जाए, मेरा ऑडियो एंड टेक्स्ट तो अपने आप ही सुधर जाएगा. यस और नो? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? हम यही सोचते हैं ना, एक बार मुझे लोगों के सामने बात करना आ जाए यार, व्हाट एल्स वी नीड. फिर तो मैं ये टेक्स्ट जैसी एंड ऑडियो जैसी छोटी मोटी चीजें तो खुद कर ही लूंगा यार. ये आपका माइंडसेट है. एंड यही तो गलती है कि जो हम गलती कर रहे हैं गाइस. हम पहले टफ चीज को क्यों कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं हम आसान चीज को करें? यू नो आई एम हेयर टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू. हम क्यों अपने आप को फोर्स कर रहे हैं वीडियो 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 वीडियो? हु केयर्स अबाउट वीडियो, राइट? और हमें लगता है कि मेरा वीडियो ठीक हो जाए, ऑडियो एंड टेक्स्ट तो मैं कर ही लूंगा यार. क्या लिखना, क्या बच्चों वाली चीज है. सो एक सिंपल सा पॉइंट ये है. लेट मी मेक इट ग्रीन फॉर यू गाइज एंड लेट मी एक्सप्लेन यू. राइट, आपको पता है दिस इज द राइट प्रोसेस. ओके, ग्रीन हुआ ही नहीं. राइट, दिस इज द राइट प्रोसेस. दिस इज द राइट प्रोसेस. दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे? राइट, ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, मैं संजीव जी की भी क्वेरी, यार देखो, द पॉइंट इज कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं सही तुम लोग गलत, तुम सही मैं सही, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर हेयर टू ब्रिंग द इम्पैक्ट. मेरा ये बोलने का मतलब था कि प्रैक्टिस कैन नेवर मेक यू परफेक्ट. और मेरे बोलने का मतलब ये था कि राइट प्रैक्टिस एज पर योर लेवल इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट. यस और नो? प्रैक्टिस सही होनी चाहिए क्या, या गलत प्रैक्टिस करते रहे? मुझे बताओ ना. प्रैक्टिस सही भी तो होनी चाहिए. मुझे सीखनी है कवर ड्राइव और प्रैक्टिस कर रहा हूँ पुल शॉट की, कवर ड्राइव ठीक होगी क्या? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई चीज समझ में आई है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. बिकॉज आप लोगों को अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करनी है. इन शॉर्ट बात यह है, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि वी शुड नो हाउ टू राइट. ऑडियो एंड वीडियो का मतलब क्या होता है? वी शुड नो हाउ टू स्पीक. एंड हियर वी गो. आप सब लोगों का अब आप सब लोगों का गोल कैसे अचीव होगा? अगर आप में से सब लोगों को अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है ना, और करेक्ट कैसे करना है वो अभी आ रहा है. ये सेशन खत्म नहीं हुआ. इट्स गोइंग टू बी गोइंग हायर हायर एंड हायर, राइट? अगर आप लोगों को अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है ना, आप सब लोगों का सबसे पहले ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? अपने रिटन पार्ट को इंप्रूव करने के लिए. बिकॉज व्हेन वी राइट, समझो, व्हेन वी राइट द ओनली गोल वी हैव कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही होना चाहिए. क्या जब भी तुम कुछ लिखते हो क्या तुम ऐसा सोचते हो कि नहीं नहीं कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है, क्विकली लिखना है? नहीं. हम जब भी किसी से बात करते हैं, चैटिंग में या लेटर लिखते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई जो मैं लिखूं वो सही होना चाहिए. इसलिए आपको अगर अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है सबसे पहले, तो आपको अपने रिटन पोर्शन पे ध्यान देना है. एंड अगर क्विक एंड कॉन्फिडेंट करना है, then only you should move towards your spoken part. आया सिंपल सी चीज समझ में? And this is what your entire English journey will look like. This is the pure gold. Understand it, right? कितने लोग इस चीज की ग्रेविटी एंड इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं? मुझे बताओ. सिंपल सी बात यह है यार, तुम लोग यहाँ पे हो ना, आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल. सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम्हें करेक्ट होना है ना, तो अपनी जर्नी पहले रिटन में सही करो. रिटन में ठीक करने से क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग को पता लग जाएगा इंग्लिश में क्या सही है क्या गलत है ना? और रिटन आसान भी होता है. सिंपल सी बात है. आई एम नॉट हियर टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स. इट्स वेरी सिंपल. जब मुझे पता लग जाए कि हाँ मुझे तो लिखना आ गया, और लिखने आने का मतलब क्या है कि मुझे पता लग गया इंग्लिश में सही क्या होता है एंड गलत क्या होता है, उसके बाद मैं अपने स्पोकन पे फोकस करूंगा. पहले अपनी इंग्लिश को फास्ट एंड क्विक करूंगा. जब मैं करेक्ट हो गया, फास्ट एंड क्विक हो गया,
फिर मैं अपनी वाटर टैप खोलूंगा, मतलब अपने मुंह को खोलूंगा, एंड आई विल गेट द कॉन्फिडेंस, आई विल रीच टू द कॉन्फिडेंस पार्ट। यस और नो? सबको ये चीज समझ में आई है? मुझे बताओ। एक पवन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको ये चीज समझ में आई? ठीक है, डन। सबको ये चीज समझ में आई है? मुझे बताओ। नाउ नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, हमें एक तो ये चीज समझ में आ गई है कि अगर हमें करेक्ट होना है तो वी नीड टू इंप्रूव आवर टेक्स्ट एंड रिटन पार्ट। क्विक एंड कॉन्फिडेंट हो गया तो हमें अपना ऑडियो एंड स्पोकन पार्ट को इंप्रूव करना है। नाउ इट्स एंड इसके ऊपर एक प्रॉपर प्लानिंग है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अब सब लोग, कितने लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि यार हमें अपनी इंग्लिश को करेक्ट कैसे कर रहे हैं? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू नो कि यार हाउ वी कैन इंप्रूव आवर, हम अपनी इंग्लिश को रिटन करेक्ट कैसे करें? मैजिक देखोगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू सी द मैजिक? I'll be just taking 10 minutes to make you understand how you can improve your text and written part. Done? Excited? आपको अपने अंदर खुद ही ग्रोथ आज एंड कल में फील होगी। एक्साइटेड हो? देखो यार, अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है ना, हाउ टू हैव करेक्ट इंग्लिश का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको पहले यहां पे समझा देता हूं। देखो सिंपल सी चीज ये है, लेट्स सपोज ये एक सेंटेंस है, ठीक है? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना चाहते हो। कितने लोग एग्री करेंगे कि अगर मुझे किसी भी चीज को इंग्लिश में लिखना है, मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए कि मैं सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करूं और मैं सेंटेंस को फिनिश कैसे करूं, वो भी विद जीरो एरर्स। यस और नो? इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अगर मुझे कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है या लिखना है, मुझे स्टार्ट करना आना चाहिए और खत्म करना आना चाहिए विद जीरो एरर्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई विल बी ट्रेनिंग यू। डन? एक्साइटेड फॉर इट? अब थोड़ा इंटरेस्ट आया? Here we go. Now, what if I tell you, and मैंने वही चीजें मास्टर सेंटेंस फॉर्मेशन लिखी हुई है, and that is what I have written. How to start a sentence or a conversation, how to end it with zero errors. अब इस चीज को समझने के लिए ना आपको तीन कंसेप्ट समझने हैं, दैट इज इट। इन शॉर्ट बात ये है, अब आप इस चीज इन शॉर्ट बात को समझने के लिए ये है, व्हाट इफ आई टेल यू कि लेट्स सपोज ये एक सेंटेंस है, अब आपको इसको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है, ठीक है? अब लेट्स सपोज आपने कोशिश की, आप नहीं लिख पाए। लोग क्या करते हैं? गूगल यूट्यूब करते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर एक कोई हिंदी का सेंटेंस है, आपको उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है ना, अपने आप को करेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको डी टेक्निक लगानी चाहिए। डी टेक्निक। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको डी टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है? मुझे बताओ, मैं सिखाऊंगा आपको। 100% आई विल बी ट्रेनिंग यू इन दैट। कितने लोगों को डी टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है? लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि हमें पता ही नहीं। तो इन शॉर्ट बात यह है, सबसे पहले डी टेक्निक लगानी है, फिर आपको सेंटेंस का टाइम एंड सेंस पता होना चाहिए, राइट? एंड द थर्ड स्टेप बाय स्टेप वे वुड बी, आपके पास फॉर्मेशन शीट होनी चाहिए। एक फॉर्मेशन शीट होती है। वंस यू नो दीज थ्री थिंग्स, अगर आपने कोई भी सेंटेंस, यार देखो एक सिंपल सी बात यह है कि लेट्स सपोज देयर इज वन सेंटेंस, अगर आपने उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर लिया, ग्रेट। अगर आप नहीं कर पाते, कहीं फंस जाते हो और आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ तीन चीजें यू नीड टू मास्टर। सबसे पहले इस सेंटेंस में आप क्या करो? डी टेक्निक लगाओ, फिर टाइम एंड सेंस लगाओ, एंड फॉर्मेशन शीट लगाओ, एंड डन, आप लोगों का सेंटेंस बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार तीन चीजें हैं ना, तो इन तीन चीजों को स्टेप बाय स्टेप वे में सीखना है और प्रैक्टिकल मेरे साथ प्रैक्टिस करो और इंग्लिश लिखना आ गया। इजी? अभी आपको बातों में इजी लग रहा होगा, मैं शो करता हूं, देखो। एंड वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले वी नीड टू यूज व्हाट? डी टेक्निक। वी नीड टू लुक फॉर कंप्लीटिंग दी सेंटेंस। हम लोगों को टाइम एंड सेंस लगाना है, फिर फॉर्मेशन शीट का कंसेप्ट है, एंड योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली फॉर्म्ड। आया समझ में? इजी है। पहले कोई भी सेंटेंस आए, डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस, टाइम एंड सेंस आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए, एंड फॉर्मेशन शीट, सेंटेंस बन गया। अब आप बोलोगे कि अमन लेट्स अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। सीखें? देखो, व्हाट इफ आई टेल यू कि ये डी टेक्निक को सिखाने के लिए आई विल बी नीडिंग 15 मिनट्स, ठीक है? मुझे इसके लिए 15 मिनट चाहिए। फॉर्मेशन शीट को सिखाने के लिए आई जस्ट नीड 5 मिनट्स, एंड इवन इस टाइम एंड सेंस को सिखाने के लिए आई विल बी नीडिंग अराउंड लेट्स सपोज 10 मिनट्स, ठीक है? आई विल बी नीडिंग लाइक दिस मच ऑफ टाइम। सो अभी इस पर्टिकुलर डे 1 में व्हाट विल बी हैपनिंग, आई विल बी लेटिंग यू नो। पूजा इज आस्किंग व्हाट इज डी टेक्निक, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो डी टेक्निक है ना, ये जो डी टेक्निक है, दिस इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू टुमारो, राइट?
कल मैं आपको डी टेक्निक आराम से 15 मिनट्स लेके समझाऊंगा एंड कल हम ये फॉर्मेशन शीट को भी डिस्कस करेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर बाय द वे कमिंग टुमारो? बट आज देयर इज अ ट्रिक टू इट. टुडे वी विल अंडरस्टैंड द टाइम एंड सेंस का कंसेप्ट. सबको समझ में आया? 3 कंसेप्ट्स हैं, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट. तो जो फर्स्ट तो जो स्टार्टिंग है एंड जो एंडिंग है वो कल सीखेंगे विद इन 15 मिनट्स में, 15-20 मिनट्स में. बट आज हम सीखेंगे द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड सेंस. रेडी? सबको आया? अब सबको ये चीज समझ में आई? डन. Obviously you guys will be, someone is saying first D technique first. Sumit, I am the trainer ना, so अगर मैं पहली बारी में D technique नहीं समझा रहा तो उसके पीछे का रीजन होगा ना सुमित. Let me be a trainer, right सुमित? है ना सुमित? So if the point is someone is saying I am coming to attend tomorrow, but कल आने से पहले इस चीज को टाइम एंड सेंस को समझना है. पहले बेस एंड देन विल बी डूइंग इट. हियर वी गो. नाउ चलो सबसे पहले यार देखो तीनों चीजें इंडिविजुअल हैं, देन वी विल कनेक्ट इट लेटर ऑन. सबसे पहले टाइम एंड सेंस को समझते हैं. चैट्स शुड बी क्लोज. नाउ द पॉइंट इज, देखो अगर आपको कोई भी इस दुनिया का आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, आप अब जो मैं आपको चीज पढ़ाऊंगा ना, आई विल नॉट टीच यू अबाउट इंग्लिश, आई विल टीच यू अबाउट लैंग्वेज. क्योंकि इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है ना, मराठी क्या एक लैंग्वेज है, हिंदी क्या एक लैंग्वेज है. What if I tell you टाइम एंड सेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है. कभी भी तुमसे कोई सेंटेंस ना बने ना, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस किस टाइम का है. अब मैं आपको बताता हूं what do I actually mean by time. फटाफट guys, within 5 minutes we're gonna wrap up this particular topic. देखो टाइम का मतलब क्या होता है? वक्त. एंड मैंने शुरू से ही बचपन से ये चीज सुनी है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि टाइम 3 कैटेगरीज का होता है, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. And with this thing, it is also very obvious to say कि इस दुनिया का मुझे कोई भी सेंटेंस बोलना है, या तो वो पास्ट की बात होगी या प्रेजेंट की होगी या फ्यूचर की होगी. यस और नो? कितने लोग इस चीज को समझ में आ रहे हैं? राइट? कितने लोगों को इस चीज समझ में आ रही है ना? सिंपल सी बात है. इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, इंग्लिश तो इज जस्ट लैंग्वेज है. इफ आई टॉक अबाउट हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, लाइक व्हाटएवर, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अगेन you pick any damn sentence, like that would be of past, present or future, which is great. ना सबसे बड़ी लोग गलती पता है क्या करते हैं कि जब वो कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, वो टाइम ही गलत सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको हर सेंटेंस पढ़ने के बाद ना वो किस टाइम का है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, राइट? और सेंटेंस फॉर्म करने के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड द फॉर्मेशन शीट. तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. हियर वी गो. अब एक ये सेंटेंस है, आप मुझे फटाफट इसका टाइम बताओ. एवरीवन, हियर वी गो. दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द टेंस देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम. मैंने टेंस का तो नाम ही नहीं लिया. अजय, हु इज सेइंग दैट दिस इज टेंस? दिस इज टाइम बॉस, राइट? दिस इज टाइम देयर, राइट? अजय, शार्प योर ईयर्स देयर, राइट? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है हम सब मिलकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे? ग्रेट. आपको इट्स यू गाइस हैव द गुड नॉलेज. द नेक्स्ट सेंटेंस, क्विकली गाइस, स्टार्ट गिविंग मी द आंसर्स, राइट? स्टार्ट गिविंग मी द आंसर्स. तुम एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे. व्हाट इज गोइंग टू बी दी, लाइक टाइम क्या है? मुझे सिर्फ टाइम जानना है, मुझे सिर्फ टाइम जानना है. इज इट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? ऑब्वियसली इट्स पास्ट. द नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अभी अभी मुझे मेल भेजी है. Is it past, present or future? Third का बताओ. Is it a past, present or future? Great, you guys are smart audience. Like जैसे someone is saying past, no, ये चीज अभी अभी खत्म हुई है ना, so it would be considered to be present. ये अभी की बात हो रही है. तो इतना तो आप लोग स्मार्ट हो. You guys are smart audience. मेरा टाइम आप लोगों ने बचाया. रजत, चैट्स को क्लोज कर दो. तो एक तो चीज मुझे समझ में आ गई है कि अगर कोई भी सेंटेंस मुझे लिखना है, I should be knowing the time of it. ये तो चीज आपको पहले से पता ही थी. I know it. But what if I tell you कि एक तो हो गया ये टाइम का कंसेप्ट, yes or no? टाइम के कंसेप्ट के बाद यू ऑल शुड नो सेंस का कंसेप्ट. एंड आप कल सब लोग मेरे साथ लाइव सेंटेंसेस लिखोगे ग्रामेटिकली करेक्ट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दी सेंटेंस. ठीक है, देखो लैंग्वेज में व्हेनेवर यू राइट अ सेंटेंस, पर सेंटेंस का ना फील आपको पता होना. सेंटेंस मतलब पता है क्या होता है? सेंटेंस मतलब होता है आपको सेंटेंस का सेंस पता होना चाहिए. सेंस मीन्स सेंटेंस की फील पता होनी चाहिए. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू. यार कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? सेंस एंड फील. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ना हमें फील देते हैं कॉन्टिन्यूटी की. समझ रहे हो?
there are certain sentences which gives me the feel of continuity. For example, अगर मैं बोलूं कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, क्या फील आ रही है? Something is happening, continuity, yes or no? बस आप टाइम एंड सेंस का कंसेप्ट समझ लो, एवरीथिंग इट विल बी कमिंग टू द प्लेस, yes or no? ठीक है, कुछ सेंटेंसेस, अब जैसे मैं दो इस सेंटेंसेस के आपको एग्जांपल्स देता हूं। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या फील आ रही है कि ये कॉन्टिन्यूटी है, सी डॉट 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 डॉट, यस और नो? सी डॉट डॉट मींस फील अभी पकड़ो। दूसरा सेंटेंस, मैं कल सोनू निगम के गाने सुन रहा था, फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस विच यू वांट टू राइट। इसमें भी बात भले ही पास्ट की हो रही है, पर फील किस चीज की है? कॉन्टिन्यूटी की, यस और नो? अभी मैं टाइम पूछ नहीं रहा, शुभम आप क्यों टाइम बता रहे हो बच्चों? अभी द पॉइंट इज यू शुड बी टॉकिंग अबाउट द सेंस ओनली, ठीक है? कॉन्टिन्यूटी की फील आ रही है, ग्रेट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे, देयर वुड बी सर्टेन सेंटेंसेस जो आप लोग नहीं बना पाओगे, उनमें फील आ रही होगी कंप्लीटेड की। यू नो देयर इज कॉन्टिन्यूटी तो लगातार होता ही है, कंप्लीटेड का मतलब पता है क्या होता है? समथिंग द वर्क विच इज कंप्लीटेड, राइट? एंड वो बहुत ही यू नो द कंप्लीटेड बेसिकली मींस इफ द वर्क इज कंप्लीटेड, चाहे वो अभी कंप्लीट होए, चाहे बाद में होए, चाहे पहले हो चुका हो, वर्क कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इफ आई से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, राइट? एंड लेट्स सपोज इफ आई से मैं सलमान खान की मूवी देख चुका था। इन दोनों केसेस में क्या फील आ रही है कि बॉस काम हो चुका है, यस और नो? या हो चुका था, हु केयर्स, बट द सेंस इज व्हाट? कंप्लीटेड, सी डॉट। कॉन्टिन्यूटी नहीं है, इट्स कंप्लीटेड, यस और नो? डन, इतना समझ में आया? अब ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, एंड अभी आपकी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज आई विल बी रैपिंग इट अप, राइट? और कल आओगे, डी टेक्निक एंड फॉर्मेशन शीट करोगे और सेंटेंस बनने लग जाएंगे। इंग्लिश इज दैट सिंपल। हम क्यों इतने सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स याद कर रहे हैं, राइट? अभी उनके बिना भी आप लोग सेंटेंसेस करेक्टली मेरे साथ लिखोगे, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फन। नाउ अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं यार, जो ना हमें कंप्लीटेड की फील देते हैं, ना कॉन्टिन्यूटी की, वो बहुत ही सिंपल तरीके के होते हैं। एंड हियर वी गो, सो देयर आर 3 कैटेगरीज ओनली। सिंपल मतलब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं एक इंग्लिश फ्लुएंसी कोच, क्या ये कॉन्टिन्यूटी है? नहीं। क्या ये कंप्लीटेड है? नहीं। फिर क्या है? ये सिंपल है। गॉट इट? इतना आया सबको समझ में? यस और नो? इज इट मेकिंग सेंस? सिंपल सी बात यही है ना, बात ही, सेंटेंस ही सिंपल है। जैसे मैं बोलूं मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनूंगा, क्या ये कंप्लीटेड है? नहीं। क्या ये कॉन्टिन्यूटी है? नहीं। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। तो इन शॉर्ट अभी तक मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लूं, आप इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलते हो, तो वो इन्हीं 3 कैटेगरीज का होगा। मैं बार बार सिंपल, कॉन्टिन्यूटी, कंप्लीटेड लिखूंगा नहीं, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल, सी डॉट डॉट इज कॉन्टिन्यूटी, सी डॉट इज कंप्लीटेड। डन? इतना समझ में आया? अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना, यू गाइज आर अहेड देन 90, लाइक 90 तो नहीं, 70% ऑफ द पीपल दोज हु आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश। कल मैं आपको डी टेक्निक एंड वो सिखा दूंगा। विमल इज सेइंग रिपीट। विमल, बहुत ही सिंपल सी चीज है यार, अगर कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का है तो हम उसको सी डॉट डॉट लिख सकते हैं कि हाँ हाँ कॉन्टिन्यूटी। अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंप्लीटेड के होते हैं तो सी डॉट, कुछ सिंपल के होते हैं तो एस। तो इन शॉर्ट बात क्या हुई कि इस दुनिया का आप कोई भी सेंटेंस उठा लो एंड just forget about English will come to us automatically. You pick any damn sentence. सबसे पहली चीज तो हमें क्या पता होनी चाहिए, डी टेक्निक के बाद हमें क्या पता होना चाहिए? हमें टाइम पता होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री? कोई भी सेंटेंस उठा लो, या तो वो पास्ट का होगा, प्रेजेंट का होगा, या फ्यूचर का होगा, यस और नो? अब जैसे ही मुझे टाइम के बारे में पता लग जाता है, मुझे उसकी सेंस पता होनी चाहिए। सेंस या तो सिंपल होगी, कॉन्टिन्यूटी होगी, या कंप्लीटेड होगी। इतना आया समझ में? कि मैंने आपको इन दोनों पॉइंट्स को बताने का क्या किया है, आपके दिमाग में 2 फिल्टर डाले हैं। फिल्टर होता है ना, यू गाइस अंडरस्टैंड फिल्टर? हम दूध डालते हैं, लाइक वी गेट द मलाई एंड ऑल दैट, फिल्टर। तो ये 2 फिल्टर है। कोई भी सेंटेंस ऐसे डालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि टाइम क्या है, हमें पता होना चाहिए सेंस क्या है। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? समवन इज सेइंग एसएससी अगेन। शिखर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इंग्लिश में बच्चे। सिंपल सी बात है कि सिंपल को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? कॉन्टिन्यूटी को सी डॉट डॉट से, कंप्लीटेड को सी डॉट से, इतना ही है। ज्यादा डोंट यूज योर ब्रेन ना। द मोमेंट वी यूज आवर ब्रेन वी लूज द टच ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज समझी जाती है इमोशन से, दिमाग से नहीं। सिंपल सी बात ये है।
लैंग्वेज बोली जाती है दिल से, राइट, दिमाग से लॉजिक्स लगाए जाते हैं, लैंग्वेज में लॉजिक्स नहीं इमोशंस लगते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इतना आपको समझ में आया? तो अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई ना, तो आपका टाइम एंड सेंस, राइट, ठीक है, आपका टाइम एंड सेंस आपको इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हियर वी गो नाउ, ठीक है। अब आप इस चीज को समझो। लेट्स सपोज एक ये सेंटेंस है, अब आप मेरे साथ चलना, ठीक है। लेट्स सपोज एक सेंटेंस है, मैं आपको पढ़ा रहा था, मुझे सबसे पहले तो टाइम बताओ। एवरीवन लेट मी नो द टाइम। सबसे पहले टाइम मुझे बताओ। गुरदीप सिंह पास्ट? नहीं यार, ये तो प्रेजेंट का है यार। ओहो, क्या कर रहे हो यार आप लोग, ये तो प्रेजेंट है। मैं आपको पढ़ा रहा था, ये पास थोड़ी हुआ यार, ये तो प्रेजेंट है यार। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? पता लगा? जब सही चीज पता हो तो चाहे ट्रेनर भी गलत बोले, तुम स्टक रहते हो कि नहीं, ये पास्ट ही है, ये पास्ट ही है। दिस इज व्हाट आई वांटेड। गुड। नाउ यू नो इट दैट इट्स द पास्ट, राइट, व्हिच इज ग्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। नाउ सेंस क्या है? सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लीटेड है, ऑब्वियसली। अब बताओ सेंस क्या है, मुझे बताओ। सी डॉट है, सी डॉट 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 है, सिंपल है, मुझे बताओ क्या है। अब ना बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं। अब देखना गलती कहां होती है। गलती तुम इंग्लिश लिखने में नहीं करते, लॉजिक्स। रजत चैट्स को क्लोज करो। देखो, आप सब लोग समझो, गलती कभी इंग्लिश की नहीं होती, गलती हमारे कंसेप्ट्स की होती है। बहुत सारे लोगों को ये लगा यार, मैं आपको पढ़ा रहा था, ये तो काम कंप्लीट हो गया है, तो ये तो सेंटेंस कंप्लीटेड हुआ, यहीं पे तो आप लोगों ने गलती कर दी। इट्स रॉन्ग गाइस, इट्स रॉन्ग। इट्स कॉन्टिन्यूटी। भले ही बात पास्ट की है, पास्ट की तो ऐसे हर चीज खत्म ही हो जाएगी। हाँ, ऐसे तो पास्ट में कुछ सिंपल एंड कॉन्टिन्यूटी बचेगा ही नहीं। अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, मैं आपको पढ़ा रहा था, इट मींस कि एक्शन तो कॉन्टिन्यूटी में ही था, चाहे पास्ट का था, हु केयर्स। हमें तो सेंस को पता करना है ना। यस और नो आया ना समझ में? कितने लोगों ने सी डॉट लिखा था? अगर तुमने सी डॉट लिखा तो तुम लॉजिक्स भी सी डॉट के ही लगाते और इंग्लिश तुम्हारी गलत हो जाती ना। सुमित आया आपको समझ में? अजय आपको आया समझ में? है ना? अगर अगर मैं आपको अपनी इंग्लिश बनाने के लिए इसको बोलता, तो आप क्या करते? आप कंप्लीटेड वाली इंग्लिश बनाते और वहीं पे आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। आया ना समझ में? यही तो गलती हो रही है। प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं है, प्रॉब्लम है सेंस की। लोग सेंस गलत करते हैं, टाइम गलत लगाते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरी तो इंग्लिश वीक है, मेरे तो ग्रामर कंसेप्ट वीक है। नहीं, ग्रामर किसी की वीक नहीं होती। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम इतना इजीली सीख लिया पूजा इज टाइपिंग। तो इन शॉर्ट बात क्या हुई कि मैं आपको पढ़ा रहा था, अब ये प्रेजेंट भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, तो देखा जाए ये चीजें तो होंगी नहीं। अब पास्ट में इट्स अ क्लियर केस ऑफ सी डॉट डॉट एंड दैट्स व्हाट आई हैव टेकन केयर ऑफ। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, इतना आपको समझ में आया? मुझे बताओ। ओके, आपको थोड़ा सा ये वो लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम वो कर दूं। अब आया समझ में? मुझे बताओ, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, नीचे का दिख रहा होगा। अब आया समझ में? क्लियरली विजिबल, इतना सबको समझ में आया अब? सो इट मीन्स, अगर देखा जाए ना, आप लोगों को ये टाइम एंड सेंस समझ में आ गया है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ग्रेट। अब क्या होने वाला है, आपको मैं कल आते ही डी टेक्निक बताऊंगा, फॉर्मेशन शीट बताऊंगा, and आप मेरे साथ पूरा का पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट करोगे। शिखर इज सेइंग एक दो एग्जांपल्स और दे दो। शिखर, हम कल देंगे ना, कल रिवाइज भी करेंगे, एग्जांपल्स भी और सारे देंगे। डन? सबको समझ में आया? राइट, सबको अच्छा लगा? आया समझ में? कितने लोगों ने पहली बारी कुछ सीखा, नया सीखा, अलग तरीके से लिखा? मुझे बताओ, लेट मी नो। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई? लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग मी, बट द पॉइंट इज, अरे रुक जाओ, अरे वेट 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 एवरीवन वेट। कल जब आप आओगे, कल कितने बजे आना है? द कल यू नीड टू कम एट 6:45, और अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा जो आपको करके आना है। ठीक है, होमवर्क क्या है? देखो, एक सिंपल सी बात है, बॉस, टुमारो द डी टेक्निक इज कमिंग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर द डी टेक्निक, बाय द वे? राइट, ठीक है। कितने लोग, कितने लोगों को डी टेक्निक के बारे में एक्साइटेड है? डी टेक्निक भी सीखेंगे, एंड कल इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी 6:45। अब होमवर्क नोट करो एवरीवन। देखो, अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो करेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्विक एंड कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। कल के सेशन में जो मैंने आज पढ़ाया उसको हम रिवाइज भी करेंगे एंड आगे रीस्टार्ट भी करेंगे,
बट एंड कल का आना जरूर, बिकॉज आप में से मैं कुछ लोगों को चूज भी करूंगा जिनको मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा, एंड एज मेरा आज बर्थडे है तो टुमारो यू वांट गेट द बर्थडे गिफ्ट एज वेल. Yes or no? How many of you guys are excited for the birthday gift? Like birthday मेरा है, but you won't give me the gift. I am going to give you the return gift. Excited? कल आना जरूर, right? आना जरूर. Today is the birthday, but the gift you guys will be getting it tomorrow, right? ठीक है. अब आप लोगों को क्या करना है, अपना होमवर्क सीख के जाओ. रजत को चैट्स को क्लोज करो. एंड एक चीज और है, आप सब लोग मुझे विश कर रहे हो, सो combine में you guys know that so many messages are coming, so I really want to thank each and everyone like who is wishing me. That's it. Okay, now the point is, अगर तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका टेक्स्ट एंड रिटन पार्ट ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं. टेंसेस फियर गॉन फॉर एवर, राइट? द पॉइंट इज, आप सब लोगों को टेंसेस से डर लगता है. कितने लोगों को टेंसेस से डर लगता है? इस वर्ड से ही टेंशन होती है ना. अब व्हाट इफ आई टेल यू कि आप मेरा एक सेशन देखो और आप जिंदगी भर टेंसेस का नाम नहीं लोगे. How many of you guys are ready? Someone is saying totally confused. What if I tell you कि आप लोग मेरा एक टेंसेस का सेशन देखो और जिंदगी भर आपको टेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Excited? How many of you guys are excited? मतलब इसमें आपको टेंसेस पढ़ाए नहीं जाएंगे, बट पहले टेंसेस का डर हटेगा अराउंड 70%. How many of you guys are ready to do this particular homework? Done? इतना आया समझ में? मैं अभी ओके, गिव मी अ मिनट, मैं एक बारी लिंक को क्लिक भी कर लेता हूं, मैं आपको बता भी देता हूं कि कैसे करना है. ठीक है, डन. अभी सबको लिंक भी मिलेगा, मैं ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दूंगा. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मुझे बताओ. गिव मी अ मिनट, मैं आपको बता देता हूं. देखो, मैं आपको ना दो तरीके के होमवर्क दे रहा हूं. ठीक है, दिस इज, मैं आपको अभी एक वाला लिंक सेंड करूंगा. देखो, टू बिकम करेक्ट इन इंग्लिश वॉच दिस वीडियो. ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है, ये 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो है. आप लोग करके आओगे होमवर्क? ये करके आओगे? मुझे बताओ. How many of you guys are going to be coming with the homework done tomorrow? 1 घंटा 1 मिनट का होमवर्क है. एंड जो दूसरा होमवर्क ये है कि हाउ टू बी क्विक एंड कॉन्फिडेंट. लाइक हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और होती है, तो आप लोग ये सेकंड होमवर्क भी करके आओगे. एंड ये सिर्फ 30 मिनट्स का होमवर्क है. अब आप इधर आओ. देखो, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप में से जितने भी लोग, अगर आप दोनों करना चाहते हो, आप दोनों कर सकते हो. आप कंफ्यूज नहीं होंगे. आपको ये दोनों होमवर्क करके आने हैं. नो योर रियल प्रॉब्लम का, जो लोग ऑडियो एंड वीडियो में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अभी टेक्स्ट में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये दोनों सेशंस को देख के आना है. लाइक आप दोनों देख सकते हो. डन? आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस विल बी प्रेजेंट हियर विद द होमवर्क डन? राइट? क्या इस होमवर्क करने से तुम्हें पूरी इंग्लिश आ जाएगी? नहीं, बट आप लोगों का जो आज मैंने पढ़ाया उसका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा. डन? आया? आप सब लोगों को ये जो लिंक्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो मिल जाएंगे, पर मैं अभी भी सेंड कर रहा हूं. आपको लिंक्स आ गए होंगे. आ गया? लिंक मिल गया सबको? डन? ठीक है, लिंक मिल गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको आया? एंड कल जो नहीं आएगा तो लॉस किसका है, मेरा क्या? मुझे बताओ. अगर कल मान लो मोनिका नहीं आती है, मान लो विमिल नहीं आती है, तो इसमें मेरा लॉस है क्या? मुझे बताओ, किसका लॉस है? राइट? गुलाब अगर नहीं आता है तो इसमें किसका लॉस है? मान लो धैर्य नहीं आता है तो इसमें किसका लॉस है? लेट मी नो. प्लीज शेयर द लिंक इन द व्हाट्सएप. वी आर सेंडिंग इट हियर. हम आपको ग्रुप में भी कर देंगे. राइट? ठीक है. गुलाब का, सबवन सिंह, गुलाब नहीं आया तो गुलाब का लॉस है. सो वी विल बी सेंडिंग यू इन द व्हाट्सएप एज वेल. एंड एक चीज मैं आपको और बताऊं, तुम में से अराउंड 80% लोग इस होमवर्क को नहीं करोगे. आया मजा सुन के? तुम लोगों में से 80% लोग इस होमवर्क को नहीं करोगे. आपको पता है क्यों? क्योंकि ये जो होमवर्क है ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं. एंड whenever we get anything free of cost, we take it lightly. सिंपल सी बात है. I'll be very honest, right? पर कल मैं सेशन उन्हीं 20% लोगों के लिए लूंगा जो इस होमवर्क को करेंगे. जो लोग नहीं करेंगे उन लोगों के लिए सेशन नहीं हो पाएगा. डन? बिकॉज द पॉइंट ओवर हियर इज, राइट, बिकॉज ये जो मैं आपको होमवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, लोग इसके लिए अराउंड 500 या 1000 रुपीज पे करते थे, देन दे यूज्ड टू गेट दिस पर्टिकुलर होमवर्क. बट मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहा हूं बिकॉज मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं कि अगर आपने मेरा सेशन यहां तक देखा है तो आप सीरियस हो. एंड आई होप आप सब लोग अपनी सीरियसनेस को प्रूव करोगे. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गोइंग फॉर इट? राइट? ठीक है, सबको ये चीज समझ में आ रही है? डन? आर वी गाइस रेडी? यू गाइस विल बी डूइंग इट. मुझे पता है लाइक नहीं करोगे आप, विच इज ओके, बिकॉज लॉस तो आपका है ना, बट करोगे? मुझे बताओ. आई हैव फुल ट्रस्ट कि आप लोग करोगे. डन?
सबको समझ में आया? सो वी हैव सेंट यू द लिंक एंड मैं अभी आप लोगों को ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी? कितने लोग एक एक्टिविटी करेंगे मुझे बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू बी डूइंग वन एक्टिविटी? कितने लोग करोगे? एक्टिविटी ये है कि आप लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। डन। एंड आपको मिनिमम 3 to 4 लाइंस लिखनी है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, अभी समझो, राइट? बिकॉज जैसे ही आप ग्रुप में मैसेजेस लिखोगे, आई विल बी पर्सनली रीडिंग इट, ताकि मैं आप लोगों की ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को, ताकि मैं आपकी रिटन इंग्लिश की प्रॉब्लम्स को समझ पाऊं। यस और नो? और आप इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी एंड इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट कितने लोग ऐसे जिन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं किया? कितने लोग लिखेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस विल बी राइटिंग इट? लेट मी नो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस विल बी डूइंग इट द एक्टिविटी? तो मैं अभी आप लोगों के लिए फटाफट एक वीडियो बना रहा हूँ, राइट? एंड जैसे ये सेशन खत्म होगा, within 1 minute में आई एम शूटिंग वन पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू गाइज। मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा वो वीडियो, एंड द मोमेंट आई विल सेंड इट, आई वांट एवरीवन शुड राइट इट मिनिमम 3 to 4 सेंटेंस की आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज आपने क्या सीखा। आप लोग लिखोगे, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि ये कम्युनिटी आपको दी जा रही है। क्यों? ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। यस और नो? एंड मैं जो होमवर्क का लिंक है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और, अगर होमवर्क का लिंक ना मिले ना, सुनो सुनो, इधर आओ, जिस ग्रुप में हो ना उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डन, इजी। मैं अपने टीम को बोल देता हूं उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं लिंक। डन, इजी। तो गाइज आई एम शूटिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज नाउ। आई वुड लव टू नो कि आपको सेशन कैसा लगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड दैट वुड बी इट फॉर गाइज टुडेज सेशन। टुमारो इट्स गोइंग टू बी द अमेजिंग सेशन, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हुई है। आई थिंक डी टेक्निक ये रही, आई थिंक ये रही, आई थिंक ये रही, व्हाटएवर। सो वी वांट टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स एंड I'll see you guys tomorrow. Bye-bye at sharp 6:45 p.m. I'm making a video, by the way, and let me know how is the session in your WhatsApp now. Bye-bye. Jai Hind, guys. I'll see you sharp at 6:45 p.m. And कल session 9 o'clock तक चलेगा, तो सारे programs को cancel करो and join me tomorrow. Bye-bye, guys. Take care.